Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. Okay, students, so session start करते हैं. So here I am sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we will be discussing about file in detail. And already you know what is the meaning of file actually. See, why we require it actually. See, whenever we, as you know, what is file? A file Contain data. it contains, Data. yes. So the data, here you have used one word data, right? So basically, see, data, that information, that this information can be entered by us. या तो information हम enter कर रहे हैं, right? या फिर हम store कर रहे हैं. We have written some program. See, till now whatever Python program we have written, so basically what we are doing,
our Python program can accept the input value. After that, some processing, some manipulation will take place on that as per our requirement. And once the processing is complete, we will be getting output, right? But whatever information we are passing or whatever output we are getting, that output is available only during the execution of the program. And every time you need to input the values through your keyboard. Why it is happening? Because to store the information, you are using variable in your Python program. और वेरिएबल का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है. क्या है, जैसे ही मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो रही है वो भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट? सो already, so it is clear that it is happening because variable used in the program is under execution, and once the execution is completed, all the information will be gone. So what if you want to store the data that were in that you are supplying, जो input आप कर रहे हैं, और that you are getting, जो generated output मिल रहा है, अगर इनको मेरे को requirement है and I want to store this permanently, so for that purpose we can use file. And usually organization would want to permanently store information about various things. It can be about the storing the information of the employees, या वो जो मटेरियल्स के साथ डील कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, राइट? सेल्स रिकॉर्ड के लिए हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. सो बेसिकली व्हाई वी वांट टू स्टोर इट, सो दैट वी कैन अवॉइड द रिपीटेटिव टास्क. तो हमें बार बार करना पड़ेगा, उसको एंटर करो, आउटपुट जनरेटर, फिर हम चेक कर रहे हैं. लेकिन अगर स्टोर कर ले तो फिर उसको एक बार जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अवेलेबल हो गई, तो हमें फिर से उसको करने के लिए पूरा प्रोग्राम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. जो रिपीटेटिव टास्क है वो हमारी बच जाएगी, राइट? And this data which you want to store permanently, as we have already mentioned, that data is stored permanently on secondary storage devices, so that we can be able to reuse it. Even in our case also, when we are writing our Python code, Python program, we are storing in, when we are writing Python program in Xcode mode, we are storing in .py, so that further if we want to work with the same program, we should be able to do that. तो परमानेंटली एक फाइल हैविंग एक्सटेंशन .py हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज पे, राइट? सो हियर each and every program is stored on the secondary device, and it will be stored on secondary device as a file. So that is the meaning of file actually. So likewise the data entered and the output generated can be stored permanently into a file. तो अगर मैं इसको रेफर करूं तो how can we define a file? So we can define a file. A file is a named location. Obviously, we provide some name to our file or extension B. So a file is a named location on a secondary storage media. Where data are stored permanently. So that we can reuse it. The data is stored permanently, you can say for later use. So when we are talking about file, actually there may be two types of file. Have two types of file. These can be your text file. कई तरह की टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी .txt हो सकती है, .doc हो सकती है, .csv हो सकती है, .py हो सकती है, right? It can be anything, any kind of text file. We have text file and a binary file. So we have these two types of file. So text file क्या होता है? Text file you can understood text file as a sequence of character.
So text file की क्या कि any file where you are having sequence of character and that character can be of any type. Means we can say text file used to represent a sequence of character consisting of alphabets, numbers, and other special character. The special character or symbols we can say, right? जो अंडरस्कोर डबल जो भी हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे इस पे सिंबल है, एक्सक्लेमेशन, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, कैप सिंबल है, परसेंट, वट एवर वी हैव ऑन अवर कीबोर्ड, right? These are special symbols. So it may contain these things. So, and you know we have various types of file. We have .txt, .csv. .csv means comma separated value. ये big popular format है हमारे Python में. And we have .doc, .docx. We have .py even our Python file. ये सब मेरी text file है, right? So, whenever we want to work with any type of text file, whenever we want to open a text file, we can use any text editor like Notepad, right? So here we can see our information can be specified in multiple lines. So here we are having this information, but actually, as you know, our computer internally understand only zeros and one. So क्या होता है कि जो फाइल कंटेंट्स हमारे, so file contents internally as it is stored नहीं होते, ये they will not be stored in the form of alphabet, number or special symbol. Rather they are stored in the sequence of byte consisting of zeros and one. लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम तो टाइप कर रहे हैं, मैंने टाइप किया A तो मेरे को वही डिस्प्ले होता है, लेकिन ये जो हमने A प्रेस किया तो ये कैसे प्रोसेस होगा, हमारे इंटरनली कैसे प्रोसेस होगा. So basically अगर हम अपने बात करें, we are inputting our value through keyboard and this keyboard is based on ASCII coding. बहुत सारी encoding schemes हम use करते हैं इस purpose के लिए कि whenever we are typing something from our keyboard, it will be encoded according to some encoded scheme used in that operating system या program जो आप use कर रहे हैं, right? और फिर ये further आपका byte stream में convert हो जाता है, right? So बेसिकली जब भी हम कोई भी एनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं, जो पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम है दैट इज ASCII यूज करते हैं ना, कुछ ये इस तरह की है पॉपुलर जो एनकोडिंग स्कीम है दैट इज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. और भी हम यूज करते हैं यूनिकोड, UTF-8, ये सब एनकोडिंग मेरी एनकोडिंग स्कीम है जो हमारे जो भी हम टेक्स्ट के फॉर्म में डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपने टाइप किया, अगर मैं एग्जांपल लूं कैसे प्रोसेस होते हैं इन्फॉर्मेशन, सपोज मैंने टाइप किया कैपिटल A, तो ये ASCII कोडिंग में कैपिटल A कन्वर्ट हो जाएगा आपका 65 में, और फर्दर दैट 65 विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइट स्ट्रीम. जो भी उसका बाइनरी वैल्यूज होती है ना, उस बेसिस पे कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा. तो ये एनकोड हुआ हमारा. तो एनकोड क्या होता है, ये एनकोड डिकोड दो वर्ड हम यूज करते हैं एनकोडिंग स्कीम में बोल रहा हूँ. व्हाट इज एनकोड एंड व्हाट इज डिकोड? एनकोड क्या होता है, अभी इसका एग्जांपल भी लेंगे हम, थोड़ा सा पहले फाइल के एग्जांपल लेंगे, तब हम एनकोड डिकोडिंग का भी मैं एक एग्जांपल लूंगा. बट चलो अभी यहाँ पे वर्ड आ गया. तो व्हाट इज एनकोड? एनकोडिंग क्या होती है? Sir, writing something in a secretive way, like a particular person can only understand. सी ये जो टेक्स्ट फाइल है ना, टाइप फाइल, टेक्स्ट फाइल में जो इन्फॉर्मेशन, इसका जो पर्पज है ना, एक्चुअली हियर वी हैव इन्फॉर्मेशन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी दैट विल बी इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, और वो क्या है, मेनली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तभी तो हमने बोला ये कैरेक्टर्स स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं क्योंकि वी कैन इजीली अंडरस्टैंड स्ट्रिंग, राइट? बट आवर मशीन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी स्ट्रीम, बाइनरी वैल्यू जानती है, तो वहाँ बाइट स्ट्रीम होगी, बाइट होगी जो सीक्वेंस होगी आपकी जीरोज एंड वन की, राइट? तो मशीन के लिए जो बेटर इंफॉर्मेशन है वो है बाइट के फॉर्म में, राइट? ह्यूमंस के लिए अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं ह्यूमंस को, ह्यूमंस के लिए जो फॉर्मेट होना चाहिए दैट शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट.
तो अब यहाँ पे when we are trying to store information to machine, तो बेटर है हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें जिसको मशीन ज्यादा फास्टली प्रोसेस करती है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनकोड। तो बेसिकली एनकोड, इसलिए तो एनकोडिंग स्कीम यूज की गई। ये एनकोडिंग स्कीम क्या कर रही है? दे आर डूइंग द टास्क ऑफ एनकोडिंग। एनकोड करते हैं। एनकोड क्या होता है? इट विल यूज टू कन्वर्ट और स्ट्रिंग जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है इनटू बाइट ऑब्जेक्ट जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, मशीन इसको अंडरस्टैंड करती है, दैट इज एनकोड। तो ये तो तब है जब हम मशीन में एंटर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। लेकिन व्हेन वी आर डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि बाइट के फॉर्म में दिखाएं, वो तो अंडरस्टूड ही नहीं होगी। वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टूड द स्ट्रीम ऑफ जीरोज एंड वन, जिसको हम बाइट बोल सकते हैं, बाइट ऑब्जेक्ट, राइट। सो उसके लिए रिवर्स प्रोसेस चाहिए। तो डिकोड क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो डिकोड में हम क्या करेंगे? वी विल कन्वर्ट object, convert a byte object into string। इसलिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना हमें, जो इवन सी जब भी हमें वट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग, जब हम पाइथन में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी अभी तक जो भी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है, इट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। बाइट ऑब्जेक्ट में नहीं हो रही, बट आज हम बाइट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कराएंगे, राइट। और बाय डिफॉल्ट इट इज कमिंग इन स्ट्रिंग बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट मोड भी हम यूज करते हैं फाइल के साथ। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड होता है आपका बाय डिफॉल्ट मोड जो होता है फाइल मोड। बहुत सारे फाइल मोड्स यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फाइल मोड होता है दैट इज टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट फाइल को अंडरस्टैंड करेगा और उसका जो फॉर्मेट होता है आउटपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं बाइनरी मोड यूज करूं तो वहां पे बाइट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, जो हम अभी इन जस्ट अ बिट वी आर गोइंग टू टेक दैट पार्ट, राइट। सो बेसिकली दैट इज हैपनिंग। तो एनकोडिंग स्कीम होती है, जैसे मैंने तो प्रेस किया कैपिटल है, वो 65 में कन्वर्ट हुआ एनकोडिंग स्कीम अकॉर्डिंग। फर्दर अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइट स्ट्रीम, जो कि बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि मशीन अंडरस्टैंड करती है और फास्टली उसको प्रोसेस करती है। सो हियर वी हैव दिस। और एक और चीज है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कोई भी चीज यहाँ पे स्पेसिफाई की, कि आपने टाइप किया, तो इस तरह से काम होता है हमारा। 65 टाइप किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आपके जो सॉरी ए एंटर किया हमने, अगर हमने ए एंटर किया कैपिटल है, तो ये इसके एनकोडिंग स्कीम एस्की यूज करें। यूनिकोड में भी यहाँ पे एस्की टेबल भी आप देख सकते हैं, इसका जो एस्की कोड होता है दैट इज 65 और अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी स्ट्रीम। जो भी 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी ना, इट विल डिस्प्ले दैट। वो तो हम पाइथन से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखना, तो क्या करेंगे? हाँ जी, बिन। तो ये बाइनरी वैल्यू है इसकी। तो बेसिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और टेक्स्ट फाइल में एक और चीज है, हियर वी कैन यूज मल्टीपल लाइन एंड टू स्पेसिफाई द एंड ऑफ लाइन सो दैट अवर कर्सर कैन बी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हम आफ्टर every line we have eol character also, end of line, eol means end of line, end of line character भी हमारा होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश एन से। तो यहाँ पे स्लैश एन, ये एंड ऑफ फाइल, हर एक के साथ ये भी स्लैश एन है, इसलिए हर एक लाइन के बाद भी एक करेक्टर आपका, ये भी एक करेक्टर है, ये भी करेक्टर है हमारा, तो ये भी ट्रीट होता है एंड ऑफ लाइन भी। तो हर एक फाइल में जब फाइल में स्टोर का इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के, एवरी टाइम एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लैश एन यूज करते हैं। तभी तो देखो मैंने रीड लाइंस लिया तो स्लैश एन दिखा दिया था, उसने आउटपुट में दिखा देता है वो, कि किसी फाइल को रीड करें हम, उसमें मल्टीपल डाटा है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले आएगा। ये हमने देखा भी था इस एग्जाम्पल में कि कोई भी टेक्स्ट फाइल हमने रेफर की थी यहाँ पे, ये test.txt है। तो यहाँ पे अगर इसको हम ट्राई करें, अगर मैं इस रीड लाइंस वाले को ट्राई करूं, तो जो आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो रहा था, अगर हम इसको प्रिंट करें, तो उसी एंड ऑफ लाइन को करेक्टर को डिफाइन करने के लिए तो हमारा ये आ रहा है कि टू डिफाइन दैट स्लैश एन मीन्स यहाँ पे एंड ऑफ लाइन हो गया, एंड टू रिप्रेजेंट दैट वी आर यूजिंग दिस।
राइट. सो दिस इज ये तो हुआ टेक्स्ट फाइल. अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ फाइल पे. तो ये तो मेरा हो गया टेक्स्ट फाइल. सेकंड टाइप जो फाइल है दैट इज बाइनरी फाइल. तो अब ये बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल्स, हियर योर इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. दैट इज स्ट्रीम हो सकती है आपकी जीरोस की एंड वंस की. And here when you are working with the binary file, unlike text file, these bytes do not represent ASCII value of character. Rather, they represent the actual content of the underlying binary file. उसके अगर हम एग्जांपल की बात करें बाइनरी फाइल के, देयर मे बी डिफरेंट एग्जांपल ऑफ इट. इसके एग्जांपल हो सकते हैं लाइक इमेज फाइल, कोई भी इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या कंप्रेस्ड वर्जन, कंप्रेस्ड फाइल है आपकी, राइट, रार या जिप फाइल है आपकी. सो ऑल ऑफ दीज आर, या यू आर डीलिंग विद एग्जीक्यूटेबल फाइल जहां पे .exe जैसे एक्सटेंशन होते हैं. So all of these are example of binary file, right? So these files are not in human readable form. These files are not in human readable form. So if you will try to open any binary file using text editor, तो क्या डिस्प्ले हो जाता है? मैं इमेज को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? ऑडियो वीडियो किसी भी फाइल को अगर मैं ओपन विद नोटपैड कर दूं या कोई भी टेक्स्ट एडिटर कर लूं, डॉक भी कर दूं सपोज, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? पूरा जिब्रिश रहता है या खुलता ही नहीं है. बिल्कुल. तो हमें केवल गार्बेज वैल्यू दिखेगी वहां पे, है ना. वी विल नॉट, जिस फॉर्म में होगी वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अजीब सा आ जाता है. Why? Because it is not possible कि ये जो text editor है ना, text editor is not capable to read your binary file actually. We need some specific software. So binary के केस में क्या होता है? We need some specific software to read or write. दोनों तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं. To read or write content of your binary file. में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए. तो कोई इमेज को करना है तो उसके लिए अलग इमेज, मेरे इमेज को डिस्प्ले करने के या उसको प्रोसेस करने के अलग सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो वीडियो के लिए अलग है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए अलग है. सो वी रिक्वायर सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर दैट. सो binary files basically are stored in a computer in a sequence of byte as I mentioned. Even अगर ये स्ट्रीम है बिट की 1001 उनकी सीरीज है, एक भी अगर बिट यहाँ पे अगर मेरी गड़बड़ हो जाए ना तो मेरी फाइल करप्ट हो जाएगी, राइट. सो इवन ए सिंगल बिट चेंज कैन करप्ट अवर फाइल एंड मेक इट अनरीडेबल टू द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर या टू द सपोर्टेड सॉफ्टवेयर जो हम भी यूज कर रहे हैं, राइट. सो even if we are getting some error, it is very difficult to resolve that if it is occurring in binary file, right. और स्टोर करना भी क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही है तो उनको तो रीड करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. सो बट वी कैन यूज पाइथन. यहाँ पे हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, बट वी कैन यूज पाइथन टू स्टोर द वैल्यूज इन बाइनरी फॉर्मेट एंड इवन टू रीड इट. कैसे करेंगे वो हम फर्दर देखेंगे. पहले तो टेक्स्ट मोड के टेक्स्ट फाइल पे काम करके देखेंगे, फिर हम बाइनरी पे भी आएंगे, उसके भी एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम इसके साथ भी बाइनरी जैसे फॉर्मेट पे भी डील कर सकते हैं, राइट. सो विल बी टेकिंग दैट पार्ट आल्सो लेटर. सो नाउ विद दिस वी विल प्रोसीड फर्दर. सो अब आते हैं सीधा फाइल पे. सो हाउ कैन वी वर्क विद फाइल? ऑलरेडी आई हैव मेंशन व्हेनेवर यू वांट टू वर्क विद फाइल,
तो सबसे पहले so whenever you want to work with file, क्या होगा? सबसे पहला टास्क क्या होता है? ओपनिंग। ओपनिंग सबसे पहला टास्क होगा यहाँ पे, जब when you are working with a file, first task will be opening a file. और फाइल ओपनिंग के लिए आप यूज करते हैं सिंटेक्स, दैट सिंटेक्स इज, कोई हम फाइल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ जैसे एफ लिया था हमने, इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल, उसको हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट भी, फाइल हैंडल या फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, जो स्टोर करेगा आपकी जिस कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हैं आप, फाइल से रिलेटेड, और इस पे किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन मेथड, एंड विद दिस ओपन मेथड वी हैव वेरियस पैरामीटर, बट मोस्टली वी यूज 2 पैरामीटर्स. फर्स्ट पैरामीटर is file name. First parameter will be used to specify your file name with its path if it is not in current working directory, with its path. Extension भी करेंगे. Somebody is on mute. Please mute yourself. Anand Yadav, you are on a, yeah. Thank you. So here, and second parameter will be related to the file mode. File access mode, we can say. So when we are specifying this, we can perform operations, and we can perform various operations. So open करने के बाद next task होगा to specify operation. And obviously किस तरह का ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम उसी बेस पे तो एक्सेस मोड लेंगे, तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये एक्सेस मोड पे डिपेंड है कि किस तरह के ऑपरेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। वंस यू हैव ओपन योर फाइल, तो यू कैन परफॉर्म रीड ऑपरेशन और वी कैन परफॉर्म राइट ऑपरेशन, बोथ। रीड करें, राइट करें या दोनों एक साथ करें, इट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट, वी कैन डू दैट। एंड वंस द टास्क इज ओवर, नेक्स्ट टास्क क्या रहेगी? Once all the operations are completed, closing the file. और क्लोजिंग के लिए हम यूज करते हैं जो भी फाइल ऑब्जेक्ट आपने बनाया, फाइल हैंडल लिया है, you will call one function close with that. In this way, your file will close. So अब यहाँ पे जो एक्सेस मोड है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड, कई तरह के एक्सेस मोड होते हैं, जो फाइल मोड हम बोल रहे हैं, फाइल एक्सेस मोड। कैन बी यूज टू डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन योर फाइल। सो कई तरह के एक्सेस मोड है, जैसे आर क्या होता है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई योर रीड मोड, मीन्स योर फाइल, इफ योर मोड इज, यहाँ पे एक्सेस मोड आपका अगर इफ इट इज आर, अगर आपने आर लिख दिया यहाँ पे, तो इट विल बी रीड मोड। इवन इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग सेकंड पैरामीटर, इट इज ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट इट विल बी रीड मोड, इट विल ओपन योर फाइल इन रीड मोड। तो ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट मोड है। अगर आप नहीं करते कोई स्पेसिफाई सेकंड पैरामीटर में, इट विल बी रीड मोड। इसी तरह राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो राइट ऑपरेशन से रिलेटेड भी बहुत कई तरह के मोड है हमारे पास। We have W, we have X, we have A, ये सारे हमारे राइट ऑपरेशन से रिलेटेड मोड है, राइट, जिनको हम कहते हैं राइट मोड। दिस इज एक्सक्लूसिव क्रिएशन, मीन्स एक्सक्लूसिव राइट मोड, एक्सक्लूसिव क्रिएशन, एंड is append mode। यहाँ पे भी आप तीनों ये राइट ऑपरेशन के लिए है। यू आर ट्राइंग टू ऐड सम इंफॉर्मेशन इनटू योर फाइल, यू कैन यूज दैट बाय यूजिंग दिस मोड। और भी बाकी यहाँ पे और भी मोड, यहाँ पे कौन सी किस टाइप की फाइल पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी मोड है। फाइल टाइप क्या है आपका, उस बेसिस पे भी हमारे दो मोड है। वी हैव टेक्स्ट मोड विद टू रिप्रेजेंट दैट, वी हैव T,
और ये बाय डिफॉल्ट मोड है, ये भी मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल रीड मोड में, रीड एंड टेक्स्ट मोड में ओपन होगी, कि टेक्स्ट फाइल के लिए वो कॉन्फ़िगर होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। तो ये भी डिफॉल्ट है हमारा, तो टेक्स्ट मोड एंड रीड मोड ये डिफॉल्ट होते हैं, इसको स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसको तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए जो मोड होता है डेप्थ इज बी। It means if you are working with image or audio, video or executable file, right, date file, dot date format होता है, ये सब बाइनरी फाइल्स होती है, तो उसके लिए बाइनरी मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, राइट। इवन यू कैन परफॉर्म more than one operation at the same time. Is at the same time you can perform read as well as write mode, append as well as read mode, write as well as uh, write, write as well as read mode. So you can perform various operation as per your requirement. Even those read write operation can be in binary mode also. So we have various variation of these mode depending on the requirement, right? And already you have seen one example of it. यहाँ पे हमने यूज किया भी था कि इफ यू वांट टू रीड द इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन, यहाँ पे ओपन किया, फाइल का नेम दे दिया। इफ इट इज इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी आप केवल फाइल का नेम विद एक्सटेंशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और पाथ में भी ध्यान रखना, अगर कोई पाथ हम स्पेसिफाई करते हैं, ऑलरेडी आई हैव मेंशन दैट कि सपोज अगर मेरी फाइल इस पाथ पे है, ये test.txt, सो ऑलरेडी यू नो दैट कि यहाँ पे या तो इसको डबल करना पड़ेगा हमें स्लैश को, या तो स्लैश को हम यहाँ पे डबल करें हर एक स्लैश को, या फिर एक और तरीका मैंने बताया था, आप जब यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश, तो क्या करेंगे, हाँ फॉरवर्ड स्लैश कर लेंगे, या फॉरवर्ड करेंगे या बैकवर्ड, ये बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, सॉरी बैकवर्ड ले लेंगे सर। ये बैकवर्ड, हाँ नहीं नहीं, आपका आंसर सही था, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसको हटा के, फॉरवर्ड स्लैश भी कर सकते हैं इनको हटा के, या इसको अगर बैकवर्ड करना है तो डबल कर सकते हैं, इन सबको डबल कर दो, या ऐसा भी हो सकता है इनकी जगह फॉरवर्ड स्लैश भी आप यूज़ कर सकते हो, ये उसमें एक ही बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सब कुछ चेंज करना ही है यहाँ पे, तो अगर टाइप करना ही था तो मैं फिर स्लैश भी चला जाता है, या इससे भी अच्छा तरीका है सीधा आर लिख दो। यहाँ पे आर लिखते ही क्या करेगा, ये जो भी लिखा है ना आप, इट विल ट्रीट दैट थिंग एज ए रो स्ट्रिंग, तो फिर ये इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसको बस स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, तो ये कंटेंट बन जाएंगे उसके, तो ये भी एक ऑप्शन है, राइट। सो बस इसका ध्यान रखेंगे, हमारे केस में कंट्रोल वर्किंग डायरेक्टरी की तरह काम कर रहा है, तो बिना पाथ के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर जस्ट रीडिंग इंफॉर्मेशन, रीड मेथड यूज किया है, विच इज यूज टू रीड योर करेक्टर नंबर ऑफ बाइट्स, बेसिकली वैसे बाइट है ये, नंबर ऑफ बाइट को रीड करने के लिए अगर बाइनरी मोड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स की बात करें अभी, तो नंबर ऑफ जितने भी करेक्टर्स हैं उनको रीड करेगा ये। एंड मैंने कोई साइज नहीं दिया, साइज देते हो तो उतने ही करेक्टर रीड करता, बट आई हैव नॉट गिवन एनी साइज, तो इट विल परफॉर्म रीड ऑपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग अप टू लास्ट। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो सी वी आर गेटिंग एवरीथिंग। उसके वेरिएशन भी है, 4 करेंगे तो फर्स्ट 4 करेक्टर करेगा। रीड लाइन है, एक रीड लाइन करेगा तो इट विल रीड 1 लाइन एट ए टाइम, सारी लाइन को रीड करना है 1 बाई 1, तो लूपिंग में यूज कर लो। तो या एक और मैंने बताया रीड लाइंस क्या करेगा, इट विल रीड ऑल द कंटेंट ऑफ योर फाइल एंड रिटर्न दोज कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट वेयर एवरी लाइन will be treated as one element of that list which will be generated। तो अगर हम इसको यूज करें, यू हैव सीन दैट 2 लाइन है मेरे केस में, एंड ये रीड वाला तो मैं कर लेता हूँ कमेंट। So here you can see it is returning the content of file, 2 लाइन्स थी, दोनों को किया, एंड एवरी लाइन इज वर्किंग एज 1 एलिमेंट ऑफ, इसके इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू है, राइट, इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू है, एट इंडेक्स 1 वी हैव दिस, इट इज जस्ट टू स्पेसिफाई योर EOL, एंड ऑफ लाइन। Now we will proceed further, but before proceeding further, actually I have created one video for some other purpose, so I would like to uh, show you that video। So first of all, just have a look at that video, just try to get the things mentioned in this video, right। although जो भी चीजें हैं वीडियो में उनको भी हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, so just have a look at it and try to grasp it। so I'm playing this।
अच्छा, अभी मैं इसको प्ले करूंगा. Here So by here- default EOL. हाँ. So just try to grasp it and whatever thing we have उनको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, राइट? इसका पर्पस कुछ और था, किसी और पर्पस के लिए मैंने इसको बनाया था किसी बैच में. सो जस्ट हैव ए लुक एट इट, मेंशन इन दिस. ये नहीं है वो, तो बैच की आ गई. जस्ट वेट फॉर ए मिनट. इट एक्चुअली कोडेड रिलेशन था. जस्ट वेट फॉर ए मिनट. ओके, अभी मैं इसको प्ले करूंगा एंड टेल मी वेदर इट इज प्रॉपर्ली ऑडिबल टू यू और नॉट. ओके, अभी हमने जस्ट प्ले किया था इसको. सो इज इट ऑडिबल प्रॉपर्ली टू यू स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है. सो हियर आई एम जस्ट जस्ट हैव ए लुक एट इट एंड ट्राई टू गैस द थिंग. उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को खुद भी यहाँ पे भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हियर आई एम प्लेइंग इट. So, यस, टेल मी. sir, there is no audio coming. कोई ऑडियो आ नहीं Yes, है? sir. नहीं नहीं सर, सर, कोई कोई audio audio नहीं. नहीं है. ओके ओके.
Just a minute. Just a minute. एक बार लीव करके मैं दोबारा से ज्वाइन करूँ. Access permissions using Python. Yes, sir. Audible to you. Welcome in this session. In this session, you will learn about file and directory access. हाँ स्टूडेंट, अभी ये ऑडिबल थी, अभी मैंने इसको जस्ट प्ले किया था वेलकम टू द सेशन करके. इज इट Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Sure. ठीक है. Access permissions using Python. Here in this session, we will discuss about various file modes. Python language allows us to perform important disk input-output operations such as creating, reading, writing, appending, and modifying. So you can create a new file on the disk, read the file stored on the disk, write data to the file stored on the disk, append new data to the end of file stored on the disk, and modify the content of the file stored on the disk. There is a specific file mode for every file operation. These file modes allow us to create, read, write, append, or modify a file. Let's see all these different modes in which we could open a file on disk. Here you can see various Python file modes. These are R, W, A, T, B, plus. R file mode is used to search for the file and opens it in read mode if the file is found, and this is default mode. W mode is used to search for the file and opens it in write mode. If the file is found, its content are overwritten. If file is not found, a new file is created. It allows you to write to the file. A mode is used to search for the file and opens it in append mode. That is, this mode allows you to append new data to the end of a file. If file is not found, a new file is created. T mode is used to search for the file and open the file if the file is found in the text mode. This is a default mode to perform text input and output file operations. Text mode files are various text file, document files, etc. B mode is used to search for the file and open the file if the file is found in a binary mode to perform binary input file operations. Binary data represent various executable file and DLL file and image file also. Oftenly we use plus symbol with these mention mode. So when you are using plus with this mode, it searches for the file, opens it to modify the content of a file by allowing both input and output operation on a file. It should be used in combination with either R, W, or A mode, depending on the requirement. As you know, there are three methods to read to a file: read, read line, and read lines. Read method read all the character from the file in a string until the end of file is reached and returns the string value. The n parameter is optional, but when specified, the read method read only the n number of bytes from the file. Read line method is used to read a single line from a file and returns it. The n parameter is optional, but when specified, the read method reads only the n number of bytes from the file.
Readlines method is used to read a list of lines from the file and returns the list. The n parameter is optional, but when specified, the read method reads only the n number of bytes from the file. Now we will discuss about R mode for reading a file. R mode searches for the file and opens it in read mode only if the file is found. This is also a default value. We can even use the R plus, which is used to read plus update mode, and it allows us to not just read a file but also modify its content. Here you can see the example. In this example, we are opening the file name test.txt present at the location, and we are opening the same file in read write mode, which gives us more flexibility. Let's take an example to read a file using read method and R mode. Here, I'm using a file named file.txt. You can see the content of file on the screen. After that, I'm writing a Python program to read a file present on the disk. So here, first of all, we are calling the open function to open a file named file.txt in read mode. In second line of code, we are calling the read method for file object to read all its content by writing file.read. And finally, we are calling the close method for file object to close the file after we have read it by writing file.close method. So as you see in the output of the code, the program looks for a file named file.txt in the directory where this Python program is stored. And if the file is found, it reads the character present in the file and display it on the screen. Now we will discuss about W mode, but before that, as you know, we can use two methods, write and write lines, to write to a file. Write method writes a string value to a file, and write lines method writes a list of lines to the file. So now we will discuss about W mode for writing a file. W mode searches for the file and opens it in write mode. If the file is found, its content are overwritten. If file is not found, a new file is created. It allows you to write to the file. We can even use the W plus used for write plus read mode, which allows us to not write to a file but also read its content. So let's take an example to perform writing to a file using write method and W mode. Here in this example, first of all, we are calling a open function to open a file named file1.txt in write mode. After that, we are creating three strings and appending the new line character /n at their end. After that, we are writing the first string value to the file using the write method of file object. After that, we are writing the second value to the file using the write method of file object. And after that, we are writing the third string value to the file using the write method of the file object. And finally, we are writing the code to close the file after completing the write operation on it. On the screen, you can see the complete code. So when you are executing this program, it will create a file named file1.txt in the current directory with its content. So you can see the output on the screen. Now we will discuss about A mode to append to a file on a disk. A mode searches for the file and opens it in append mode. That is, this mode allows you to append new data to the end of a file. If file is not found, a new file is created. It allows you to append to the file by setting the cursor position to the end of file. We can even use the A plus mode, which is used for append plus read mode. It allows us to not just append to a file but also read its content. So let's take an example to understand A mode to append to a file on a disk. Here we will be using existing file on disk named file1.txt. This file contains data. Greetings, hope you are doing well. Now let's try to write the
data and append data to this file by taking input from an already initialized string using the write method. So here you can see the code on the screen. In this code, first of all, we are calling the open function to open a file named file1.txt in write mode. After that, we are creating 3 strings and appending the new line character at the beginning of each string to make the appended string appear in the new line. And then we are writing the first string value to the file using the write method of file object. Then we are writing the second value to the file using the write method of file object. And finally, we are writing the code to close the file after completing the write operation on it. So when you will execute this program, it will create a file named file1.txt in the current directory with its content, greeting, hope you are doing well, never give up and keep learning, second line, and finally in third line, keep smiling. Now we will discuss about how can you modify a file on disk. There are following ways to modify the content of a file in Python: by opening a file in W+ mode and by opening a file in R+ mode. As you know, R+ mode searches for the file and opens it in read plus update mode if the file is found. W+ mode is used to search for the file and opens it in write mode. If the file is found, its content is overwritten. If file is not found, a new file is created. It allows you to first write to the file and then reads it, and reading a file before writing to it will return an empty string. Now let's take an example using W+ mode to modify the file. Let's say that we already have an existing file on disk named file1.txt with content. This is a beautiful day. Using the W+ mode, we'll erase the content of an existing file, and if the file is not found, it creates a new file and writes data to it, and then it will let you to read the file, something which W mode won't allow you to do. So here on the screen you can see the code of using W+ mode to modify the file. Here in this code, first of all, I'm importing a module OS. After that, we are calling the open function to open a file named file3.txt in write mode. Then we are creating a string and appending the new line character at their end. Then we are writing a string to the file using the write method of file object. And after that, we are calling the seek method to set the cursor position to the 0th bytes from the beginning. So here we are calling the 3 method of OS module: seek_set, seek_cur, and seek_end. Students, here in this code is according to Python 2.7, which is mentioned here. In Python 2.7, we use these 3 things: seek set, seek current, seek end. In Python 3, to mention the same, we are using number. To represent seek set, we use 0 here. To represent seek current, we write 1 here. And to represent seek end, we write 2 here. Don't worry about that. I'll be taking example of that also in our interpreter also for the same. Seek_set is used to set the cursor to the beginning of the file. Seek_cur set the cursor to the current position in the file. Seek_end set the cursor to the end position in the file. After that, we are calling the read method for file object to read all its content, and then finally we are closing the file after completing the write operation on it. So when you are executing this program, it will modify, rather erases the content of a file, and now its content look like hello world, keep smiling. Next, we will be taking the example of using R+ mode to modify the file. Let's say that we already have an existing file on disk named file2.txt which content live and let live. Using the A+ mode will let you not just read the content of the file but also modify the content of a file. So you can see the code on the screen. In this code, we are importing the module OS first, and then we are calling the open function to open a file named file3.txt in write mode. Then we are calling the read method for file object to read all its content. Then we are getting a string and to write to the file. Then we are calling the 3 methods: seek_set and seek_cur and seek_end of OS module. Then we are writing a string to a file using the write method of a file object. Then we are calling the seek method to set the cursor position to 0 bytes from the current position. Then we are going to read the file again to read its updated content. Then we are calling the read method for file object to read its updated content. And finally, we are closing the file after completing the write operation on it.
So when you are executing this program, it will modify the content of a file, and the modified content look like leave freedom live. Now we will be taking the case of writing and read. Okay, so basically, as per this, so we have some more modes here, some more variation. As I mentioned, we have various variation of access mode. So basically here we use this plus, which is used to represent more than one mode at the same time. Right, more than one mode at the same time means if I'm writing R plus, it means we can perform read as well as write operation. If I have written W plus, see only W write mode, but if I am writing W plus, it means you can perform write as well as read operation on the file. You can use this variation on other things also. Even if I'm writing R plus T, it means you are performing read operation in text mode, which is by default one. अगर हम नहीं लिखते ना तो भी इस तरह का मोड काम करता है. Text mode means where we are working with text file only. So here read in text mode. अगर बाइनरी फाइल और टेक्स्ट मोड हो तो ये उस कंटेंट उस तरीके से दिखाएगा जैसे टेक्स्ट एडिटर में आपका डिस्प्ले होगा, मतलब अजीब सा जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सब काइंड ऑफ गार्बेज वैल्यू. सो सिमिलरली वी हैव वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो आरबी. आरबी मीन्स इसको हम आर प्लस बी भी लिख सकते हैं, प्लस आरबी भी लिख सकते हैं. इस आरबी प्लस अभी लेंगे. आरबी का मतलब है रीड इन बाइनरी मोड. बी होता है बाइनरी के लिए, एज आई मेंशन. इफ यू हैव रिटन आरबी, इट मीन्स रीड इन बाइनरी मोड. आर प्लस बी भी लिख सकते हैं लाइक दिस. और अगर मैंने कर दिया आर बी प्लस, प्लस का आर के साथ प्लस है तो रीड राइट, डब्ल्यू के साथ प्लस है तो राइट रीड. सो अगर मैंने आर बी प्लस कर दिया, इसका मतलब we can perform read as well as write. Read as well as write in binary mode. B लगा हुआ है तो binary mode. Similarly, we have A plus. A plus का तो आइडिया हो जाएगा. It means append. अभी हम लेंगे इसके एग्जाम्पल. Don't worry about this. Even we have X also. Append as well as, append तो right है, as well as read, right? So we have this. So now I'll take some example where we will make use of these different variation of it, right? So यहाँ पे example लेते हैं. So here if you are reading the information, अभी जो हमने कोड लिखा था, so here I am taking another ideally here. Here we have written some code of it. तो अब राइट का एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे राइट ऑपरेशंस का यहाँ पे एग्जांपल लिखता है. हाउ कैन यू परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन योर फाइल. सो व्हेन यू वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन, तो मोड तो हमारा W हो जाएगा, राइट. एंड आफ्टर दैट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन वी यूज टू फंक्शंस. वी कैन यूज टू फंक्शंस. तो राइट ऑपरेशंस की बात करते हैं. तो मोड तो हो गया W. तीन मोड है, W X A, तीनों की बात करेंगे. और इसमें जब राइट ऑपरेशन है तो यू मोस्टली वी यूज टू फंक्शन. वी कैन यूज राइट और वी कैन यूज राइट लाइन. जैसे रीड लाइन्स है तो इस तरह राइट लाइन्स. दो फंक्शंस भी है. तो so here right say you can, it can use to write means it can be used to add one line at a time in your screen. एक स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट है सिंगल स्ट्रिंग. राइट लाइन्स में यू कैन पास
मल्टीपल स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ इटरेटर। ये आपका लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है, यू कैन पास दैट विद इन राइट लेंथ। सो बेसिकली वी कैन से राइट क्या होता है, फॉर राइटिंग ए सिंगल स्ट्रिंग वी कैन से फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग and right lines में we can use for writing a sequence of strings। जिसमें हम कोई इटरेटर यूज कर लेंगे by using some iterator। iterator का मतलब list tuple, iterator like list tuple etc। सो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ इट। राइट ऑपरेशन हम करेंगे कोई भी सी यहाँ पे एक नया नाम लिखता हूँ मैं अपनी फाइल का। सपोज इस फाइल को मैंने नेम दे दिया यहाँ पे myfile.txt और मेरे को मोड लिखा हमने W। इस बार हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन यू विल राइट f.write। अभी राइट फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ एंड हियर whatever information you want to add you can specify। suppose I am storing first line, suppose I want to add this। so here you are performing it and इन दिस वे। अब सपोज मेरे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पे मैंने फुल पाथ लिखूंगा तो उसी पाथ पे फाइल जाएगी, और अगर इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइड द कंप्लीट पाथ ऑफ इट देन इट विल ट्रीट करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन दैट केस, राइट। सो एंड प्रेजेंटली वी डोंट हैव एनी फाइल हैविंग दिस नेम इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। सो व्हाट विल हैपन इफ यू हैव स्पेसिफाई a file name which is not existing at the specified location, it will create a new file for you if it is W mode। if there is no file named myfile.txt in the specified location, अगर मैंने नहीं किया तो current working directory की location है, so it will create a file for you। अभी हम देखें ये current working directory हमारी इसी location को ले रहा है जहाँ पे हमने अपने कोड को सेव किया हुआ है। it is taking that, we don't have any file like myfile.txt kind of thing now। so it will create a file for you and add this content in that, right। so if I am using it and I am giving a name to this write example.py, so storing it our location, simple code यहीं पे स्टोर कर रहा हूँ मैं इसको, save। so it is executed means राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो एक फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। so we have created one file and if I open it जो कंटेंट आपने स्पेसिफाई किया है यही करेगा। अब सपोज आई एम परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन अगेन एंड आई एम जस्ट चेंजिंग द टेक्स्ट। पहले था दिस इज फर्स्ट लाइन। सो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या है कि इस नेम की फाइल ऑलरेडी है। सो इफ यू हैव अ फाइल हैविंग if you are already having a file named myfile.txt in the specified location and mode is W for write operation, what will happen, it will replace the existing file, means all the contents or the existing content of my file will be replaced with the new content। उसके अंदर जो content है वो पूरा replace हो जाएगा और केवल ये content वहां पे बचा रहेगा। अभी तक इस फाइल के अंदर content है this is first line। अब मैं अगर दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं यहाँ पे, फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करें, सो ऑपरेशन चल गया, लेकिन क्या होगा इस केस में, अगर आप चेक करें फाइल को, पुराना कंटेंट गया, केवल ये आपका कंटेंट बचेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद W, क्योंकि W के केस में क्या होगा, ऑलरेडी जो कंटेंट है वो सबको रिमूव कर देता है, इरेज कर देता है, और केवल जो लेटेस्ट कंटेंट आप स्पेसिफाई करेंगे ये उन्हीं को लेगा, राइट। सो दैट इज W। अब एक और मोड है यहाँ पे X।
X is known as exclusive creation. It is also used for write operation, means to add information in your file. But actually it is known as exclusive creation. Exclusive creation का मतलब क्या है? It will add content in your file only if there is no file in the specified location having this name. इस नेम की कोई फाइल अगर नहीं है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अगर इस नेम की कोई फाइल है तो ये ऑपरेशन आपका फेल हो जाएगा. W के केस में हो जाता है, रिप्लेस कर देता है. लेकिन इस केस में अगर उस नेम की फाइल ऑलरेडी है सो इट विल बी फेल्ड. सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं अभी, सो इट विल गिव एरर, इट इज शोइंग फाइल एग्जिस्ट, राइट. तो इस तरह की फैसिलिटी आपको दे रहा है. हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा नेम करूं, न्यू नेम दो फाइल को, नहीं है सो इस नेम की कोई फाइल नहीं है, सो इट विल क्रिएट ए फाइल फॉर यू एंड ऐड द स्पेसिफाइड कंटेंट इन दैट. जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं यू कैन स्पेसिफाई, यू कैन कॉल दिस राइट मेनी टाइम्स एंड हियर यू कैन add this content. So see, if I am executing it now, तो इस नेम की my file 1.txt की एक फाइल क्रिएट करेगा. ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, my file 1.txt बन गई है और जो भी कंटेंट आपने स्पेसिफाई किए हैं वही कंटेंट वहाँ पे स्पेसिफाई होंगे. दिस इज एक्सक्लूसिव क्रिएशन. बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे W है उस केस में रिप्लेस हो जा रहा है. सपोज आई डोंट वांट टू रिप्लेस इट. मैं क्या चाहता हूँ, जो कंटेंट है वो बने रहे और बाकी जो भी कंटेंट मैं ऐड कर रहा हूँ, दिस कंटेंट शुड बी एडेड आफ्टर दैट. For that purpose we will be using append mode. उसके लिए यूज करते हैं मोड A, append. So what will happen? See, with W what is happening? With W actually your cursor will be moved in the beginning. और जब beginning में जाता है तो अगर कुछ कंटेंट है उनको ये रिमूव कर देता है. बट इन द केस ऑफ append it will put the cursor at the end of line. जो लास्ट है वहां पे आपका कर्सर पुट करता है. जो भी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे append मोड के साथ, those content will be added after that. तो आपका ऑलरेडी जो कंटेंट है वो भी बना रहेगा. जैसे माई फाइल पे मैं चला दूं इसको, माई फाइल में अभी जो डेटा है मेरा, दिस इज, चलो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये डेटा हमारा है, राइट. नाउ हियर अब यहाँ पे कुछ हम कंटेंट ऐड करते हैं इसमें. दिस इज सपोज सेकंड लाइन. सेकेंड लाइन, इस तरह से और भी कंटेंट. और मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन में जाए, उसी के साथ नहीं तो उसी में आ जाएगा एंड ऑफ लाइन के बाद. तो मैं यहाँ पे स्लैश एन कर दिया. और अगर इफ यू वांट टू ऐड सम मोर लाइन तो स्लैश एन में कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज जस्ट अनदर लाइन. तो ये तो हम फॉर्मेटिंग है जो हम अपने तरीके से कर सकते हैं. राइट को मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं या इसमें इस तरीके से भी आप कंटेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, तो ये आपका रिप्लेस नहीं करेगा उस कंटेंट को, ऐड करेगा इस कंटेंट को आफ्टर दैट. सो सी, इफ मोड इज append. सो हियर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया. अब अगर मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ यहाँ पे, इफ आई वांट टू सी दैट, सी माई file.txt इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड. सपोज अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे append हो रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा, मेरे को फाइल को ओपन करके देखना है. आई वॉन्ट दैट कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, append वगैरह सब हो रहा है, I want to display that information on my screen. तो मेरे को append as well as read ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था अगर append as well as read करना है तो कौन सा मोड यूज होगा, क्या करना चाहिए मेरे को यहाँ पे, append plus A+, राइट. तो अब मैं कर देता हूँ A+. तो मैं इसको रीड करता हूँ. तो रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं आप, एफ डॉट ऑल द करेक्टर रीड करना है तो रीड लाइन्स कोई भी कर सकते हैं. मैं रीड यूज करता हूँ, ठीक है. सो आई एम यूजिंग रीड हियर. सो आई एम डूइंग इट, आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. सो सी, फिर से ऐड हो गया, ऑपरेशन चल गया आपका. अगर देखें तो 2 लाइन और ऐड हो गई क्योंकि append है, अब तो ऐड करता जाएगा, ठीक है ना. फिर से 2 लाइन ऐड हो गई यहाँ पे, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं हुई स्क्रीन पे. आप कहेंगे कि प्रिंट नहीं किया, चलो प्रिंट भी कर लेते हैं. और जितनी बार चलाएंगे उतनी बार ये append करता रहेगा इन्फॉर्मेशन. अब मैं करूँगा फिर से 2 लाइन append हो जाएंगी क्योंकि ये मोड है. अभी भी नहीं आई इन्फॉर्मेशन. अब तो मैंने प्रिंट भी कर दिया, इन्फॉर्मेशन ऐड भी हुई है, बट इट इज़ नॉट बीइंग प्रिंटेड. व्हाई इट इज हैपनिंग? सो एक्चुअली व्हाट हैपन, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन अपना, सो इट इज पुटिंग योर कर्सर एट द एंड ऑफ लाइन, इट इज एडिंग दैट, राइट. तो कर्सर आपका लास्ट में है. अगर लास्ट में और फिर आप रीड ऑपरेशन चला रहे हो तो ऑब्वियसली जब लास्ट में चला गया कर्सर तो रीड करने के लिए तो कुछ है ही नहीं इसके पास. तो क्या करना पड़ेगा, what we need to do that if you want to read the entire content again, so we need to move this cursor.
हाँ, फ्रॉम द एंड लोकेशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकेशन को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक फंक्शन f.seek। सीक फंक्शन होता है, f हैंडल ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं f.seek, राइट। एंड यहाँ पे हम स्पेसिफाई करने के लिए लोकेशन को लिख देते हैं 0, ये बिगिनिंग में ले जाएगा आपका। और अगर आपको इफ यू वांट टू नो तो ये तो मूव करने के लिए है। इवन इफ यू वांट टू नो द लोकेशन ऑफ योर कर्सर, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ योर कर्सर, उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, इसको हम बोलते हैं टेल। इट विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंट लोकेशन। तो सी, जब मैंने परफॉर्म किया तब मैं f.tel क्या है, और सीक के बाद जब मैं बिगिनिंग में ले जा रहा हूँ फिर से मैं f.tel को कॉल कर देता हूँ। उसको मेरे को डिस्प्ले भी कराना है तो मैं प्रिंट के अंदर पास करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेस होगा पता नहीं लगेगा हमें। सो प्रिंट, सो यहाँ पे जो लोकेशन होगी उसको दिखाएगा, और सीक के बाद जो लोकेशन है उसको भी सपोज मेरे को देखना है। और यहाँ पे कुछ मैसेज सा भी लिख देते हैं, इससे मैं पता लगे बिफोर सीक। सीक चलाने के बाद ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज आफ्टर सीक, आफ्टर मूविंग द कर्सर, ये भी आप कह सकते हैं आफ्टर सीक, ठीक है। सो सी, तो यहाँ पे बिगिनिंग पे ले जाएगा कर्सर, जब बिगिनिंग पे ले जाएगा उसकी लोकेशन में हम बता रहे हैं, और फिर रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल रीड एंटर कंटेंट। तो अपेंड भी करेगा, अपेंड भी करेगा जो भी कंटेंट आपको अपेंड कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ ऐड भी करेगा और उसको डिस्प्ले भी कराएगा जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ऐड होगी, ठीक है। तो सी, यही काम करते हैं ना, अभी इन सबको हटा देते हैं यहाँ से ना, एक लाइन रखते हैं बस, ये है मेरी फाइल। अब तो इसमें वो 2 लाइन ऐड भी करेगा और फिर वही टास्क, और हम उसको अब फाइल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे डिस्प्ले होगा। सो सी, रन मॉड्यूल, ओके, सो इट इज शोइंग दैट इंफॉर्मेशन, सो इट इज शोइंग। सी, इसने अपेंड भी किया और यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया बिफोर सीक लोकेशन 70 थी, जो 70th लोकेशन पे गया, फिर सीक चलाया हमने, सीक के बाद लोकेशन हो गई 0, मतलब बिगिनिंग में चला गया, और फिर आपने रीड करना शुरू किया तो इट इज रीडिंग द कंटेंट जो भी है। तो इसने रीड किया कंटेंट, स्लैश है ना तो इसलिए वो आपका लाइन ब्रेक ले गया, और एक लाइन ब्रेक आपका प्रिंट के थ्रू आ गया, राइट, प्रिंट भी तो लाइन ब्रेक ले जाता है। तो हियर वी आर हैविंग दिस, सो इट इज रीडिंग द कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट को वी आर रीडिंग द कंटेंट। तो हियर इन दिस वे वी कैन परफॉर्म दिस, जब भी हम रीड कर रहे हैं वी कैन रीड लाइक दिस, यहाँ पे कंटेंट आपके रीड भी होंगे, ठीक है। वो कर्सर रह गया होगा यहाँ पे मुझसे ना, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया होगा मैंने, इसलिए स्लैश एन चला गया ये, वो तो फाइल के ऊपर है, फाइल कंटेंट क्या है। सो हियर इन दिस वे वी कैन मेक यूज ऑफ इट। तो ये प्लस वाला आप W के साथ भी कर सकते हैं, आप X के साथ भी कर सकते हैं, यू कैन यूज इट विद वेरियस ऑप्शन हियर। तो यहाँ पे जिनके साथ चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप राइट लाइंस भी यूज कर सकते हैं। सी, रीड लाइंस, रीड लाइंस क्या करता है, रीड लाइंस क्या करता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड लाइंस, फंक्शन It will read the lines. ये आपकी इट विल रीड योर फाइल एंड रिटर्न द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और इसका ऑपोजिट अगर मेरे को करना हो कि मेरे कंटेंट जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल, मल्टीपल लाइंस है, उन मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एंड आई वांट टू ऐड ऑल दिस एलिमेंट एज ए सेपरेट लाइन, इसका ऑपोजिट करना है, राइट करना है, वो भी एक लिस्ट से रीड करके इंफॉर्मेशन को। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट लाइंस, जैसे रीड के लिए रीड लाइंस है, इसी तरह से राइट ऑपरेशन के लिए राइट लाइंस है। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे सेपरेट एग्जांपल लेते हैं इसका। तो एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं, सेव तुम कर ही चुके हैं। सो हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ इट। सपोज जब बना दिया है ओपन, और कुछ भी नेम दे दो फाइल को, जो भी आपको देना है। सपोज हियर आई हैव स्पेसिफाई माई फाइल 2, क्योंकि माई फाइल भी है 1 भी है, तो माई फाइल 2 कर देता हूँ मैं, एक फ्रेश फाइल। और यहाँ पे रीड, आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है,
जो भी कोई भी WXA ले सकते हैं आप, ए या करेंगे या W करेंगे, बिगिनिंग में जाएगा, अभी तो फाइल है ही नहीं इस नाम की, एक नई फाइल क्रिएट करेगा, राइट। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज एनी मोड। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड द इंफॉर्मेशन इन माय फाइल फ्रॉम सम लिस्ट। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है कंटेंट की यहाँ पे, एंड हियर वी हैव वेरियस कंटेंट इन दिस, वी हैव दिस, सपोज वी हैव गाइस स्लैश एन जैसा भी हम यहाँ पे कर देते हैं, कर्सर नेक्स्ट में चला जाए। आफ्टर दैट so here I have one list जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 and 3rd. so here we have this, I want to add this with my file .txt. so for that purpose अगर आप कोई सी इटरेटर से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, so then you can make use of this write line also. so I can write f dot write lines and I can pass this list. कोई इटरेटर पास करना है इसमें, so here you can pass, and if you want to display that information also, परफॉर्म करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन को यहीं पे डिस्प्ले भी कराना है, तो आई कैन यूज W+। और फिर क्या करना है आपको बताइए, हाँ जी राइट ऑपरेशन हो जाएगा, बट क्या ये रीड भी कर देगा इन्फॉर्मेशन या कुछ करना पड़ेगा चेंज मेरे को? सीक करना पड़ेगा। यस, तो सीक करना पड़ेगा, तो f डॉट सीक 0, क्योंकि यहाँ पे एंड में आ जाएगा, फिर से मैं मूव कर दिया हमने कर्सर बिगिनिंग में और फिर रीड कर रहे हैं, तो इट विल रीड एंटर कंटेंट, कोई साइज नहीं किया तो इट विल रीड एंटर कंटेंट फ्रॉम बिगिनिंग अप टू लास्ट। सो दैट वी हैव डन, एंड नाउ वी विल चेक इट, रन मॉड्यूल। ओके, सेव कर लेते हैं इसको बाय गिविंग वन नेम, राइट लाइन एग्जाम्पल डॉट py। सो सी यहाँ पे आपका तो एक फाइल बनी इस नाम की, यू कैन चेक इट, आपकी लोकेशन जो है यहाँ पे आपकी फाइल भी बन गई होगी, माई फाइल डॉट txt, राइट। एंड हियर आफ्टर दैट माई फाइल, उसके बाद ये रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जो कि हमने एक इटरेटर के थ्रू किया, दिस लाइन हैज बीन एडेड इन योर फाइल, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट रीडिंग इट। W+ है तो इट विल परफॉर्म राइट एज वेल एज रीड, तो रीड भी किया, 0 पे कर लिया ऑब्वियसली, नहीं तो लास्ट में रीड करने की कोशिश करते तो कुछ नहीं आता, ऑपरेशन तो चलता बट आउटपुट में कुछ नहीं होता। सो हियर इन दिस वे वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डिफरेंट मोड आल्सो एज पर अवर रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये कई मोड हम यूज कर सकते हैं इनके वेरिएशन बाय यूजिंग प्लस काइंड ऑफ थिंग, वी कैन डू दैट, राइट। रीड के भी हम कई एग्जांपल ऑलरेडी पहले भी हम देख चुके हैं, राइट। सो हियर इवन रीड का मैं कुछ और भी केसेस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आई विल शो यू सम मोर केसेस कि जो रीड ऑफ कर रहे हैं ना, और कई तरीके से हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, कई तरीके से रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, कि कोई भी रीड करना है इंफॉर्मेशन को, सी लेट मी शो यू दैट। सपोज हियर कोई भी फाइल है, चलो इसी फाइल से रीड कर लेते हैं इस बार केवल रीड ऑपरेशन, और रीड करने के लिए f डॉट रीड तो यूज किया ही था आपने, ये तो हम यूज कर ही चुके हैं। देयर आर वेरियस अदर वेज आल्सो, कि सपोज आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं
या तो आप रीड लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं और एक लूप भी यूज कर सकते हैं। इवन लूप में आप डायरेक्टली भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, क्योंकि वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग वी आर स्टोरिंग इन दिस एफ। इवन यू कैन यूज लूप लाइक दिस आल्सो फॉर कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने, सपोज लाइन वेरिएबल ले लिया, आई वांट टू रीड द कंटेंट लाइन बाय लाइन इन एफ, डायरेक्टली ऐसा भी कर, क्योंकि डेटा सोर्स जो है मेरा दिस फाइल, इस फाइल के जो कंटेंट है डेटा सोर्स एफ हो गया, उसमें स्टोर करा लिया मैं इस फाइल ऑब्जेक्ट में। फाइल ऑब्जेक्ट से अब मैं उसको रीड करता हूं, तो यू कैन राइट लाइक दिस प्रिंट, और हमें पता है 3 लाइन है इसमें, अभी हमने जस्ट ऐड की है प्रिंट लाइन। लेकिन अभी एक चीज हो रहा है कि अगर आप ऐसे रीड करोगे ना इसको डायरेक्ट, और एफ डॉट क्लोज हमने कर ही रखा है लूप के बाद, तो सी 3 लाइन है कंटिन्यूअस है, लेकिन इफ आई एम रीडिंग दिस कंटेंट, इसको मैं कर देता हूं रीड लूप थ्रू लूप, सपोज इस तरह का कुछ नेम दे दिया डॉट पी वाई। तो सी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर एवरी लाइन यहाँ पे स्लैश एन। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब कंटेंट रीड कर रहे हैं देयर यू हैव ईओएल करेक्टर विच इज स्लैश एन, और विद प्रिंट आल्सो वी हैव 1 स्लैश एन, तो 2 स्लैश एन हो गए, तो उसी वजह से एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई। एक स्लैश एन ने यहाँ पे कर्सर लाया, फिर से स्लैश एन मिल गया तो फिर से कर्सर नेक्स्ट में चला गया, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग गैप्स इन दिस। अगर एक स्लैश एन का इफेक्ट आपको ओवरराइड करना है तो यू कैन डू दैट वन थिंग, ऑलरेडी यू नो। इसके साथ हम कर देते हैं एंड इक्वल्स टू, तो ये ओवरराइड करने के लिए एक स्लैश, नहीं तो 2 स्लैश एन का इफेक्ट जा रहा है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो एक का इफेक्ट हट जाएगा, और जैसे कंटेंट है फाइल में एज इट इज इट विल बी डिस्प्लेड। तो एक ये भी तरीका है, यू कैन रीड द कंटेंट लाइक दिस, राइट। आफ्टर दैट इवन अगर रीड लाइंस में ले रहे हैं तो ऑलरेडी यू नो दैट रीड लाइंस में तो आप लिस्ट में आ जाती है, लिस्ट से भी आप रीड कर सकते हैं। सी इसी को मैं रीड लाइंस के थ्रू करूं तो इस बार मैंने क्या किया, नाउ वी आर चेंजिंग लिटिल बिट, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि एफ डॉट रीड लाइंस, ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट, कंटेंट को रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। उस लिस्ट को मैं स्टोर कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में, सपोज आई हैव टेकन सम वेरिएबल डी, एंड आफ्टर दैट आई कैन रीड। तो उसके लिए लूप भी यूज कर सकते हैं, इट्स जस्ट यू आर लूपिंग थ्रू द वैल्यूज ऑफ ए लिस्ट। सपोज तो मैं कुछ ऐसा यूज कर लेता हूँ, कोई वेरिएबल ले लिया, लाइन इन डेटा सोर्स मेरे केस में डी है, एंड यू कैन स्पेसिफाई सपोज जो भी मेरे को डिस्प्ले कराना है वी कैन डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन। तो कुछ भी डिस्प्ले कराना है, सपोज आई एम डिस्प्लेइंग, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लाइन, या पहले इन्फॉर्म लेता हूँ एक वेरिएबल में, मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं कि सपोज आई हैव रिटन कंटेंट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इसको मैंने एक्चुअली क्या लिया, वैसे तो कंटेंट प्रिंट करके भी आ जाएंगे, लेकिन आई विल शो यू वन थिंग। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट words, if I am using this words, so here you can see, तो करेक्टर नहीं लाइन कर रहे हैं, मेरे वेरिएबल का नेम है लाइन। सो हियर इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, सो यहाँ पे भी आ रहा है, और इफेक्ट वो प्रिंट का वो तो इफेक्ट है ही जो मैंने बताया, तो ये तो अभी सिमिलर जा रहा है। इसको मैंने क्यों लिया है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं कंटेंट, जैसा वो मैं करने जो जा रहा था एक्चुअली। सो आई एम टेकिंग कंटेंट वेरिएबल एंड हियर इक्वल्स टू, तो आप कंटेंट को ना डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। इवन लाइन डॉट स्प्लिट, इसके साथ भी हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। जो कंटेंट आ रहे हैं एक्चुअली एक स्ट्रिंग की तरह हम इनको ले रहे हैं, राइट। सो जो भी कंटेंट आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, और प्रिंट कंटेंट, सॉरी यहाँ पे वो तो लाइन करेंगे तो डायरेक्टली उसी को कर देगा जो पहले आउटपुट था। वी आर यूजिंग दिस, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक। Line previously will now become a list with the words separated, each element in the list. सी ठीक है। सो सी
इट इज शोइंग द आउटपुट लाइक दिस। अगर आपको उस कंटेंट को भी एकदम सेपरेटली चाहिए आपको, सो यू कैन यूज दैट। और अगर मेरे को ये अलग अलग लिस्ट तो चाहिए, अलग अलग लिस्ट रिटर्न तो हो रही है, लेकिन मेरे को एक कंबाइंड वे में ही चाहिए, हर एक लाइन, एक लाइन का पूरा कंटेंट चाहिए, तब तो एक और है, ये स्प्लिट तो आपने यूज किया ही है। देयर इज वन मोर, स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस करेंगे तो सी अभी कंटेंट ये है जहाँ पे वर्ड हो रहा है, और अगर मैं स्प्लिट लाइंस करूँ यहाँ पे रन मॉड्यूल सी, तो ये हर एक केस में इस तरीके से गया है। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस? पहले वाले में क्या है और इसमें क्या है? तो हियर पहले वाले को भी एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोनों का तो देख ही लिया आपने, स्प्लिट स्प्लिट लाइन। सो आई होप यू आर गेटिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह आ रहा है आउटपुट, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा लिस्ट की तरह जा रहा है। अब लिस्ट में भी इनको भी आपको इस तरीके से चाहिए, हर एक लाइन अलग जा रहा है लिस्ट में, इस तरीके से आउटपुट चाहिए, या फिर यू आर गेटिंग द आउटपुट यहाँ पे सेपरेट सेपरेट करना चाहिए। तो स्प्लिट यू कैन यूज स्प्लिट स्प्लिट। एक काम करते हैं इंटेलिजेंस में ना, ये सॉरी एज ए कमेंट इसको भी यूज कर देते हैं, स्प्लिट का भी लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि क्या किया था हमने यहाँ पे। सो हियर वी हैव दिस। In this way we can work with various things, so we can make use of this split line also to, so there are various ways to read the content। तो read content तो हमने देखा ही है, even we can read this content in different ways। लिस्ट में भी आ रहा है तो लिस्ट में भी हम इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं, या कंबाइन करके भी कर सकते हैं। एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। तो कई वेरिएशन हो सकते हैं यहाँ पे रीड के, जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ we will be discussing about some more feature related to our file operations, file handling, and further we will be taking the case of file management also, but we'll be taking further features after a short break। So we एक break ले लेते हैं, it's 11:37, so we will continue our session at 11:50। till then you can have a break। Thank you, sir.
Okay, students, I am back. So should we continue our session now? Yes, sir. Okay, Yes. so here I'm sharing my screen first. Okay, so now I'm going to take the case of seek in detail. अभी जो हमने use किया है seek function, whenever we are reading the information, so we are reading our information. Simple. So हमने पहले code लिए. I have written that, and you know that when we are reading, if you are entering some value, it will read exact number of character, whatever you are passing here, and after that again, if you are having this read without any parameter, so basically it means whenever you are performing read operation, your cursor will be at fourth location, and after that, if you are calling read without any parameter, it will read entire content, but from the present location of it, right? And if you want to read the whole content again, you can make use of seek. So here in this case, if I'm executing it, suppose I'm giving this name to my script. So here it is showing. So first of all, it is reading 4 character. And again, if you are using read without any character, so your cursor has been moved at 4th location now. So next, if you are calling the same without any parameter, it will read entire content, but from the present location. उस location के बाद ही इसने read किया. So here we are having this. So here अगर मेरे को फिर से entire content को read करना है तो मैं क्या करना है? Already you know. हाँ जी, क्या करना है? क्या करना होता है? seek 0. Dot. इससे पहले अगर मैं seek 0 कर दूं, फिर ये हम we can read all the content. So if I have moved my cursor to the beginning, so here see now it is reading that entire content again. So now with this seek we have various variation. If you see here actually it is similar to this. We have 2 parameter also 0 0. Right now we have not specified second parameter, so it will take as a 0, and if I am executing it, output will be same. Output will be same here, right? So what is the meaning of it actually? And in the second parameter, we can use only 3 values. We can use 0, 1 and 2. So what is the meaning of this? What is the meaning of 0? And what is this seek? Actually here what is happening, 0 means you are considering your thing from the beginning. So अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में देखें हम. When you are written 0, 0, it means it will read these number of character, means it will move your cursor at 0th location from the beginning. At 0th location from the beginning. अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, if I am entering 4 here, या मैं यहाँ पे चलो 5 कर देता हूँ, it means it will move your cursor at 5th character from the beginning. That is the meaning of it. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूं, आप सी द आउटपुट, तो पहले तो रीड 4 ही किया है, लेकिन अब ये क्या हुआ, उसके बाद हेलो गाइस था, वो हट गया, 5th लोकेशन के बाद कर्सर गया, फिर वहां से इसने रीड करना शुरू किया. दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. सो अब आपको पता है कि अगर मैं 0 लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या मीनिंग, इट मीन्स it will move the cursor at 0th location from the beginning, right? That is the meaning of it. लेकिन अगर आप 1 कर रहे हैं, it 1 you किया, तो इस the meaning of 1 here, it means it is used to represent the thing from the current location. जो भी presently अभी कर्सर की लोकेशन चल रही है, उसी से ये रीड करना शुरू करेगा. दैट इज 1. अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं इसकी जगह, और अभी यहाँ पे 4 कर रखा है हमने, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम और चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये 0 रहेगा, बस ये करंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. सी अगर मैं करूँ आउटपुट, तो हियर ऑब्वियसली हेलो एंड करंट लोकेशन 4th हो जाएगी, तो 4th लोकेशन से स्टार्ट कर रहा है.
लेकिन यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोशिश करूं सो इट विल गिव यू एरर, वो 0 ही रहना चाहिए। द पर्पज ऑफ दिस कि ये बस करंट लोकेशन से करेगा, कोई भी लोकेशन जहां पे आपका कर्सर है एक्चुअली इट विल जस्ट टेक द थिंग्स फ्रॉम देयर, दैट इज द मीनिंग ऑफ 1। अब आते हैं 2 पे। 2 किस लिए यूज हो रहा है? द मीनिंग ऑफ 2 इज इट विल सेट द रेफरेंस पॉइंट, जहां से कहां से चीजें कंसिडर हो, जैसे यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग हो रही थी, यहाँ पे फ्रॉम द करंट लोकेशन हो रही है। इस केस में 2 में क्या होगा, इट विल सेट द रेफरेंस पॉइंट जहां से चीजें कंसिडर होंगी, सेट द रेफरेंस पॉइंट to to the the nth to the nth position to the left, डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, टू द लेफ्ट, फ्रॉम द एंडिंग करता है, ये फ्रॉम द एंडिंग चीजों को कंसीडर करता है। उसमें भी कैसे, सेट द रेफरेंस पॉइंट टू द nth पोजीशन टू द लेफ्ट फ्रॉम द एंड। But there is one more fact with this. If you have written 2 in second parameter, it works only in binary mode. It works only in binary mode, जिसके लिए भी यूज करते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं अभी इसकी जगह 2, तो ये if I am entering here, बाइनरी मोड नहीं है अभी, सो इट इज गिविंग यू स्ट्रिंग, राइट, इट इज गिविंग यू स्ट्रिंग। ये तो इसकी वजह से आ गया, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचा इसने कुछ नहीं किया। आर यू गेटिंग? वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। एफ रोड 4 तो 4 कैरेक्टर रीड किया उसने तो, राइट, बट हियर यहाँ पे इसने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि फ्रॉम द एंड लेगा, फ्रॉम द एंड ये लेगा, लेकिन आपने तो 0 किया हुआ है ये लोकेशन, तो ऐसे तो ये जाएगा नहीं, ये कैसे उल्टा चले यहाँ पे। तो उसके लिए अगर मैं देखना चाहता हूँ इफेक्ट, तो नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव करे डायरेक्शन बताने के लिए, लेफ्ट साइड में कितना, लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर को रीड करना है, रेफरेंस पॉइंट कितना सेट करना है। समझ मैंने कर दिया 10, तो ये लास्ट से 10th लोकेशन पे जाएगा और वहां से रीड करेगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ अब, सो अभी क्या है कि आपको एक एरर देगा, इसने दिखाया आपको अनसपोर्टेड ऑपरेशन कांट डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव सीक्स। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस मोड। एक्चुअली ये बाइनरी मोड में आपका काम करता है, ना कि नॉर्मल मोड में, तो इसको मोड को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कर दिया RB, आई हैव यूज RB, और अब हम अगर रीड करें यहाँ पे तो सी, नाउ इट इज रीडिंग द कंटेंट, और B किया है तो इट विल टेक द थिंग्स नॉट इन स्ट्रिंग। सी पहले जो भी आ रहा था दैट वाज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, but now the things are coming in byte, and to represent that thing that we are getting byte object, not the string object, we have this prefix with this. It means it is taking this thing as a byte object. तो सी यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो कंटेंट था ना, कंटेंट है हमारी फाइल का, रेफरेंस लिया मैंने कौन से फाइल का, माई फाइल 2। तो ये कंटेंट है, वी हैव रिटन दिस कोड हियर एंड वी आर गेटिंग दिस आउटपुट हियर। कोड को यहाँ रखते हैं। सी सो 10th लोकेशन, और फ्रॉम द एंड बाइनरी मोड करेंगे, और फ्रॉम इस एंड से 10th लोकेशन पे गया। सी द लोकेशन, यहाँ से अगर यहाँ पे जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिस T, तो यहाँ से एंड से इसने 10 करेक्ट किया, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग इट। ये हेल्थ ऑफ इसकी वजह से आ रहा है रीड 4,
लेकिन इसको बाइट की तरह लिया इसने, राइट। सो इट इज हियर इट इज वर्किंग लाइक दिस। तो ये 2 वाला जो ऑप्शन है केवल बाइनरी मोड में काम करता है, और फ्रॉम द एंड कैसे काम करता है, हियर यू हैव सीन इट। अब एक और चीज है यहाँ पे, इट इज टेकिंग द थिंग्स इन बाइट फॉर्म। अगर मेरे को इनको स्ट्रिंग की तरह ही डिस्प्ले कराना हो तो बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कन्वर्जन ऑफ बाइट ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? डिकोडिंग। बिल्कुल, डिकोडिंग। तो हम डायरेक्टली भी डिकोड कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए एक फंक्शन ही होता है हमारा डिकोड। इसी तरह एनकोडिंग अगर करना है तो उसके लिए हमारा फंक्शन होता है एनकोड। तो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ दोनों का सेपरेटली, और फिर हम इसको डिकोड करेंगे। यहाँ पे यहीं पे हम डिकोड भी कर सकते हैं। तो पहले एक सेपरेट एग्जांपल डिकोडिंग और एनकोडिंग का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा फंक्शन, सो दैट यू कैन नो अबाउट इट। डायरेक्टली बाइट को भी हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। So here I'm going to take one example of your decoding and encoding. तो डिकोडिंग का लेते हैं। सपोज मैंने 2 वेरिएबल लिए एंड वी हैव स्पेस सम वैल्यू CDAC नोएडा सपोज, एंड हियर आई एम टेकिंग अनदर वैल्यू, बट इसमें मेरे को बाइट की तरह लेना है इन्फॉर्मेशन को। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन नॉट इन द फॉर्म स्ट्रिंग बट इन द फॉर्म ऑफ बाइट, बाइट ऑब्जेक्ट की तरह करने के लिए यू विल यूज बी एज अ प्रीफिक्स एंड स्पेसिफाई द वैल्यू CDAC नोएडा। एंड इफ यू चेक इट नाउ, अगर इनका मैं टाइप भी चेक करूं, इसको मैं यूज करूंगा एनकोड के लिए या डिकोड। चलो डिकोड ले लेते हैं डिकोड के लिए। तो डिकोड डॉट पी वाई, ये नेम दे देते हैं इसको। सो सी, पहले वाला स्ट्रिंग है, दूसरे वाला बाइट है, राइट। अब हम करते हैं डिकोडिंग। तो डिकोडिंग कैसे करेंगे? डिकोडिंग मीन्स वी आर कन्वर्टिंग बाइट इनटू स्ट्रिंग। तो किस पे चलाना है? बाइट क्या है? बी के अंदर है, और इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे एक फंक्शन आपका डिकोड, बाइट है डिकोड। और डिकोड करने के लिए यू आर यूजिंग सम एनकोडिंग स्कीम, जिसमें सबसे पॉपुलर जो स्कीम्स है दैट इज UTF-8 एंड ASCII। कोई भी यूज कर सकते हैं आप, या तो यहाँ पे आप टाइप कर दो ASCII ASCII, और यू कैन टाइप द सेम विच इज शोन हियर UTF-8। ये दोनों पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम्स हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों में ये जो मेंशन होती है, ये कौन सी एनकोडिंग इन्वॉल्व है बीच में। सो हियर वी आर टेकिंग इट एंड स्टोरिंग इट सपोज इन अनदर वेरिएबल C। तो यहाँ पे C के अंदर ये इन्फॉर्मेशन क्या आएगी? ये डिकोड करेगा आपके इस बाइट ऑब्जेक्ट को एंड कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। डिकोडिंग का पर्पज ये है, और वो वैल्यू आपकी C में जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी। तो अगर यहाँ पे इसको चेक भी करना हो, वैसे तो प्रिंट C करके भी हम देख सकते हैं, और अगर इसको और भी चेक करना तो कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। इफ C इक्वल्स टू A, दोनों सेम है, सेम ही वैल्यू हमने किया हुआ है, तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है तो हम कह सकते हैं डिकोडिंग सक्सेसफुल। ये तो बस जस्ट थोड़ा सा मतलब करने के लिए, अदरवाइज मेन आइडिया तो यही था। तो सी व्हेन आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, सो इट इज शोइंग, तो कन्वर्ट हो गया, अब इस तरह से डिस्प्ले हुआ एंड इट इज शोइंग डिकोडिंग सक्सेसफुल। सिमिलरली इसका अगर मेरे को रिवर्स करना है, मीन्स आई वांट टू परफॉर्म एनकोड। अगर एनकोड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसी को लेके मैं उसका एक अलग एग्जांपल बना लेता हूँ। फाइल इसको तो सेव कर लिया हमने, इसको क्लोज कर देते हैं, और इस बार डिकोडिंग कर लेंगे। तो हम क्या करें अब? एनकोडिंग का, सॉरी, एनकोड करना है तो एनकोड क्या लिखना चाहिए मेरे को? ए लिखना चाहिए, बी? किस पे चलेगा एनकोड? एनकोड मीन्स वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू बाइट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? ए या बी? A. ए, क्योंकि स्ट्रिंग को तो एनकोड किया, आप एनकोड करोगे, करना है एनकोड, तो इसके अंदर ये फंक्शन है एनकोड।
और यहाँ पे भी जो एनकोडिंग स्कीम्स है उसको लिखना पड़ेगा। आप यू कैन राइट UTF-500, यू कैन राइट ASCII। सो हियर उसको स्टोर किया हमने, प्रिंट किया, और फिर मैचिंग C इक्वल्स टू ऑब्वियसली B से मैच करेंगे क्योंकि बाइट, तो अगर ये कन्वर्ट हुआ है बाइट में तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि वैल्यू तो सेम थी, बस ये स्ट्रिंग के फॉर्म में थी, ये बाइट के। फाइव यूजिंग तो इट शुड डिस्प्ले एनकोडिंग सक्सेसफुल, अदरवाइज एनकोडिंग फेल्ड। सो ये केस में तो सक्सेसफुल ही है, इसको मैं नेम दे देता हूँ encode.py। सो सी इट इज शोइंग, ये बाइट के फॉर्म में दिखाया अब आपको इसने, और एनकोडिंग सब क्योंकि कन्वर्ट हो गया, मैच किया तो इसको इससे मैच किया है सी की वैल्यू से, सो ऑब्वियसली इट इज ट्रू, सो इट इज गिविंग यू दैट। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस हियर आल्सो, कि अगर मेरे को अभी आउटपुट यहाँ पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया अपने कोड को, तो ऑब्वियसली बाइट की तरह दे रहा है। अगर मेरे को इसको स्ट्रिंग की तरह ही डिस्प्ले कराना, क्योंकि बाइनरी मोड ले लिया, बाइनरी मोड है तो जो भी रिटर्न होगा वो आपका बाइट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, राइट। अब बाइनरी हो गया, बाइनरी फाइल बाइट के फॉर्म में होती है इन्फॉर्मेशन, राइट। सो अगर मेरे को इसको फिर भी स्ट्रिंग में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है हमारा स्ट्रिंग, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, जब आप इसको रीड कर रहे हो ना, व्हेन यू आर रीडिंग दिस केस, सो यू कैन डू वन थिंग, वहीं पे डिकोड कर दो, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यहीं पे हमने किया, तो वी कैन यूज डिकोड इट, डिकोड, एंड हियर यू कैन स्पेसिफाई डिकोडिंग स्कीम, जो एनकोडिंग स्कीम जो है एनकोड डिकोड के लिए जो यूज हो रही है, यहाँ पे ASCII लिख सकते हो या UTF-500, तो मैं लिख देता हूँ UTF-500, ये पास करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये इसके साथ किया, बाकी इसका क्लोजिंग हो गया प्रॉपर। तो सी इसके साथ नहीं करता मैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी दिख जाएगा आपको। सो हियर इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, सो सी अब ये स्ट्रिंग है, आप टाइप करके भी चेक कर सकते हो, अगर आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया होता तो टाइप भी चेक, तो ये बाइनरी की तरह ही ट्रीट हो रहा है अभी, ये सॉरी हाँ बाइनरी की तरह हो रहा है, बाइट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, बट इट इज स्ट्रिंग नाउ। इस पर भी अगर करना होता है यहाँ पे, तो उसको भी आप करके देख सकते थे, सेम उस तरीके से वहाँ पे चला दो उसको, तो अब दोनों स्ट्रिंग बन जाएंगे बाइनरी मोड के होते हुए। सो तो हियर दैट इज अबाउट सीक, और यहाँ पे सीक के साथ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें भी हमने यहाँ पे देख ली, एनकोड डिकोड जैसी चीज़ें, तो ये भी हमारा काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कुछ, अगर जब हम डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ डील कर रहे हैं। इसको भी पहले सेव कर लेते हैं, गलती से क्लोज ना हो जाएगी। डे 8 ठीक है। सो नाउ विद दिस वी विल एनकोडिंग का प्रोसीड। कोड एक बार दिखाएंगे क्या, क्या डिफरेंस किए थे? हाँ हाँ, पहले तो डिकोड एनकोड होते क्या है? Decode is changing from byte to string and encode the other way around. ठीक है, नाउ आई विल शो दैट। क्लोज कर दिया हमने, दोबारा ओपन कर लेते हैं। दिस इज एनकोड, and this is decode. ठीक है, here you can compare also. Okay, sir. Done. Thank you. Okay, so now with this we will proceed further. So now we will have a look at our PPT also. तो ये सब तो हम कर चुके हैं, ये तो कल ही हमने एक्सप्लेन कर लिया। नाउ वी हैव दिस डिफरेंट मोड, आई होप यू नो each about each and every mode now. R, W, X, A, T, B, W, what is the meaning of it, right? इनके वेरिएशंस हैं। बाकी ये पैरामीटर थर्ड को हमें बताने की जरूरत नहीं होती, और भी पैरामीटर मोस्टली हम इन दो पैरामीटर को ही के साथ ही डील करते हैं। राइटिंग का भी ऑपरेशन हमने देख लिया है, रीडिंग का भी देख लिया है, रीड में भी रीड लाइन्स कैसे काम कर रहे हैं, सीक टेल का भी हम केस देख चुके हैं, वी कैन रीड इन डिफरेंट वेज, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्लोजिंग वाला भी हो गया है। यू नो दीज वेरिएशंस आल्सो, ट्राई फाइनली, और विद के थ्रू भी इन्हीं कोड को जो भी लिख रहे हैं हम इनके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं आप, ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस पार्ट, राइट। तो वो भी कर सकते हैं। सपोज इसी को मेरे को इसके थ्रू अगर करना होता, विद के थ्रू करना होता, तो कैसे करते? कोई भी कोड जो लिखा है हमने, इसको अगर मैं विद के थ्रू करना है तो कैसे? ट्राई कैच फाइनली के थ्रू भी कर। अच्छा, ये तो ओपन ही वही हो गया,
यहाँ पे किया था ना हमने विद के थ्रू, ये वी कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग दिस, ऑलरेडी यू नो दैट, कल ही हमने लिया था। ओके, Python directory and file management. Okay, so now अब आते हैं, how can you manage your file, even not file, how can you manage your directory also? Directory means folder, right? तो उसके लिए एक बड़ा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज OS मॉड्यूल। ऑलरेडी हमने इसके कुछ फंक्शन यूज किया, जैसे get cwd, राइट, टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसी तरीके से और भी मैनेज, तो विद can use, we have various function within this OS module through which we can perform various operations on our file and directory to manage these, right? तो कई तरह के operations हम यहाँ पे perform कर सकते हैं। It may be creating new folder, creating new file, तो आपको पता लग गया, but how can we create new folder? But through Python. So how can you create folder, remove folder, right? Or modifying, renaming folder, even with file also, how can you do that? So now I'm going to take some example of it. तो फाइल डायरेक्टरी, मेरा डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फोल्डर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, फाइल का मैनेजमेंट, तो आई एम गोइंग टू शो यू सम फंक्शन फॉर दैट। ये भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद डायरेक्टरीज एज वेल एज फाइल्स। तो उसके लिए सेल में कर लेते हैं इसको, एक सेपरेट सेल खोल लेते हैं, उसी से कॉपी कर लेंगे कोड। Here I just want to demonstrate about some functions available within this OS module. So सबसे पहले तो OS module को import करना पड़ेगा, and if you want to know about directory, already I have mentioned that it will show you os.getcwd. You will know about information about, so this is our current working directory here. मैंने एक new session open किया अभी, वो reference नहीं दिया अपनी फाइल का, तो it is showing you that. If you want to change it, तो ये तो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अब मेरे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है इसी को, जहाँ पे हमारे कोड फाइल है। तो कैसे चेंज करेंगे आप, तो सी, और अगर आप इसकी फाइल देखना चाहें ना तो OS, तो ये तो मेरी जो लोकेशन है उसके लिए एक फंक्शन होता है लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट dir। अगर आपने लिस्ट dir में कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो इट विल शो यू द करंट ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई पाथ, तो भी इसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स है, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी python.exe वगैरह ये सब है, उनके DLL और कुछ फोल्डर जिनके अंदर हमारे फर्दर मॉड्यूल एंड पैकेजेस हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल पैकेजेस हैं। सो इट इज शोइंग विद दैट। लेकिन अगर मेरे को चेंज करना हो एंड आई वांट टू चेंज दिस, मेरे को यही सेट करना है जहाँ पे हमारे कोड है ना, आई वांट टू सेट दिस एज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी फॉर दिस सेशन। सो हियर how can you do that? For that purpose within OS we have one function chdir। यहाँ पे उस पाथ को स्पेसिफाई कर दो जिसको आपको एज ए करंट वर्किंग डायरेक्टरी मैनेज करना है, राइट? तो यहाँ पे भी जब भी पाथ स्पेसिफाई करें, या तो इसको डबल करो या फिर R कर दो। यहाँ पे वैसे एक फॉरवर्ड स्लैश का भी ऑप्शन है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। सो हियर इफ यू आर यूजिंग इट, अब अगर मैं चेक करूँ फिर से os.getcwd, इट हैज बीन चेक्ड, it has been changed, now it has been changed and see, अगर मैं लिस्ट डायरेक्टरी यहाँ पे चला दूँ, अब इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो दिखाएगा, जो हमारी कोड फाइल्स, टेक्स्ट फाइल जो भी हमने क्रिएट किया, सी जो भी कोड फाइल, ये पैकेज हो गया, ये तो ये कोड फाइल और भी जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पे हमने जो प्लेस की है अपने फोल्डर के अंदर, इट इज शोइंग दैट। कुछ फाइल तो हमने आज ही क्रिएट की हुई है, जैसे माई फाइल 1, राइट, इट इज शोइंग दैट। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी की लोकेशन, डायरेक्टरी की फाइल्स को अगर आपको देखना हो, सपोज मैं डी ड्राइव है, यहाँ पे डी ड्राइव में देखना चाहता हूँ व्हाट आर द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, व्हाट आर द फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है? तो अगर मैं देखना चाहता हूँ, सो यू कैन स्पेसिफाई दैट आल्सो। इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई द पाथ हियर। तो अगर डी ड्राइव का मेरे को देखना तो आई कैन राइट लाइक पाथ स्पेसिफाई कर दो उसका, d:// डबल स्लैश करना पड़ेगा। तो हियर इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, तो सी डी, अब ये डी ड्राइव के अंदर जो भी रही होंगी हमारी फाइल्स वगैरह जो भी हैं, राइट, जो फाइल्स फोल्डर जो भी हैं, इट इज शोइंग यू दैट। तो डी ड्राइव के अंदर जो भी हैं, इट इज शोइंग यू दैट। तो फिर से उसी लोकेशन पे जाते हैं हम अपनी, सो इट इज शोइंग यू दैट। सो दैट इज हियर यू कैन सी ऑल द डायरेक्टरीज। और अगर मेरे को इफ आई वांट टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी,
अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाऊंगा. इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज तो ऑलरेडी नो दैट, तो ये हम चेंज कर ही चुके हैं. यहाँ पे अगर मैं करूँ बिना किसी उसके तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी, सपोज इसमें मेरे को एक न्यू फोल्डर बनाना है, and I want to do that through Python. So for that purpose, within this OS we have one function mkdir. राइट. सो क्या फोल्डर बनाना है उसका नेम भी देना पड़ेगा. सपोज मैं एक फोल्डर बना देता हूँ टेस्ट नाम का. कोई फोल्डर यहाँ पे नहीं है, फाइल जरूर है test.txt, बट अगर हम देखें यहाँ पे एक ही ये दो ही फोल्डर है, PyCast एंड दिस CDAC, और कोई फोल्डर नहीं है. सो आई वांट टू क्रिएट न्यू फोल्डर, न्यू डायरेक्टरी. तो mkdir मेक डायरेक्टरी. सो इफ आई एम यूजिंग इट तो सी एक फोल्डर बन गया यहाँ पे, राइट. इट हैज़ बीन क्रिएटेड. और अगर आप इसको चेंज करना चाहें, सपोज I want to change it, so you can rename it also. For that purpose we have function rename. So rename में दो पैरामीटर होगा, दो पैरामीटर पास करेंगे. पहला तो जो एग्जिस्टिंग नेम है, फर्स्ट पैरामीटर योर एग्जिस्टिंग नेम और नेम, एंड आफ्टर दैट व्हाट न्यू नेम यू वांट टू यूज इट, जो भी आपको यूज करना. सपोज इसकी जगह मैं यूज करना चाहता हूँ न्यू टेस्ट को. अभी टेस्ट है, इसको रीनेम करना चाहता हूँ विद दिस टेक्स्ट. जो भी जिससे भी करना है यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू अकॉर्डिंगली. तो जैसे मैं करूँगा, सी इट हैज़ बीन रीनेम्ड विद न्यू टेस्ट नाउ. और अगर आपको ये रिमूव करना हो, तो os.remove. और सी अब मेरा फोल्डर ब्लैंक है, आई वॉन्ट टू रिमूव. सो उसके लिए हम यूज करेंगे rmdir. डायरेक्टरी को करना है ना, रिमूव कर सकते हैं फाइल के लिए. rmdir डायरेक्टरी को करते हैं पहले. इसी फोल्डर को मेरे को डिलीट करना है. अभी कोई कंटेंट नहीं है इसके साथ क्योंकि हमने क्रिएट किया. इफ आई एम यूजिंग दिस rmdir एंड आई वांट टू रिमूव दिस फोल्डर विच आई हैव जस्ट क्रिएटेड, या कोई भी फोल्डर, तो इसको करना है आपको. तो सी ये डिलीट हो गया, यहाँ पे चला गया. लेकिन if you are using this approach to remove such type of folder which is containing some content within it, उसके अंदर कुछ और सब फोल्डर है या फिर उसके अंदर कोई फाइल है, राइट. सो कोई भी अगर कंटेंट है किसी फोल्डर के अंदर, उसको अगर आप डिलीट करने की कोशिश करें, यू कैन नॉट डिलीट थ्रू दिस rmdir. सी CDAC ये पैकेज है वैसे मेरा, लेकिन एक फोल्डर भी है यहाँ पे, फोल्डर की तरह डिलीट हो रहा है. सो इसको मैं अगर डिलीट करने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेरे कंटेंट है कुछ, क्योंकि पैकेज है तो ऑब्वियसली फाइल तो है $NIT तो होगी, उसके अंदर मॉड्यूल्स फाइल भी होंगी, .py फाइल भी होगी. इफ यू ट्राई द सेम विद दिस यू नॉट बी एबल टू डू दैट. rmdir केवल तभी डिलीट करता है आपके डायरेक्टरी, आपके फोल्डर को, इफ इट इज एम्प्टी. इफ इट इज एनी फोल्डर, एनी डायरेक्टरी इज कंटेनिंग सम कंटेंट विद इन इट, देन यू कैन नॉट डिलीट इट, राइट. सो फिर भी अगर करना हो फॉल्सली, फिर भी अगर करना ही है, राइट. सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे CDAC1. CDAC1 करके फोल्डर बन गया. और उसके अंदर मैं कोई फाइल स्पेसिफाई कर देता हूँ. सपोज यहाँ पे CDAC1 मैंने कुछ कर दिया. अब ये एम्प्टी नहीं है, राइट. CDAC1 एम्प्टी नहीं है आपका. अगर मैं rmdir के थ्रू इसको रिमूव करने की कोशिश करूँ, सो इट विल नॉट बी रिमूव नाउ. CDAC1 रिमूव नहीं होगा. सी सेम एरर आएगी. लेकिन फिर भी अगर आपको इसको रिमूव करना ही है फोर्सली, इवन इफ यू वांट टू रिमूव एनी फोल्डर, इवन if it is containing content, in that case also if you want to remove it then we can use this. तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है, फोर्सली करना ही है तो एक मॉड्यूल है setil, राइट. तो इस मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा अगर फोर्सली मेरे को करना ही है. setil.rmtree. एक तरह से हर एक पूरे ट्री स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी स्ट्रक्चर ये फॉलो हो रहा है ना आपका रूट से लेके इसके अंदर जितने भी फोल्डर, सब फोल्डर या फाइल, उस पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट. इस तरह से नेम आया एक्चुअली rmtree. और ये यूज करेंगे. और CDAC1 अगर ये मैं करूँ अभी यूज यहाँ पे, सो सी इट हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ. रिमूव हो गया वो. इन दिस वे अगर करना ही है तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. और अगर किसी फाइल को रिमूव करना हो आपको,
फाइल क्रिएट करने का तो देख ही लिया, डब्लू मोड करे, डब्लू करे, एक्स करे, डब्लू करे या ये एक्स करे या ए करे, तीनों में ही न्यू फाइल क्रिएट होती है अगर उस नेम की कोई फाइल नहीं है। और किसी फाइल को रिमूव करना तो उसके लिए आप यूज करते हैं ओएस के अंदर ही अवेलेबल है रिमूव। किसी फाइल को सपोज मैं आई वांट टू रिमूव दिस माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको मेरे को रिमूव करना है, तो उसका यहाँ पे आप फाइल नेम विद पाथ, लेकिन करंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो डायरेक्टली फाइल का नेम दे सकते हैं ओएस डॉट रिमूव। और यहाँ पे फाइल जो मैं सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे ये फाइल है अभी माई फाइल डॉट टी एक्स टी, अभी यहाँ पे है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इट हैज़ बीन रिमूव, सी रिमूव हो गई यहाँ से। सो दिस वे यू कैन रिमूव योर फाइल्स आल्सो। तो ये कुछ फंक्शंस है सिंपल से, एंड दे कैन आल्सो बी हेल्पफुल यू टू मैनेज योर डायरेक्टरी डिफरेंट वे, जिसमें आप क्रिएट करना है, डिलीट करना है, रिनेम करना है। सो या इफ यू वांट टू व्यू all the available folders and files in a specific location, so you can make use of these simple functions for that purpose. So in this way you can manage your files as well as a directory by using these features. So this is about Python directory and file management. एक बार इस पे we will have a look at it. अच्छा, यहाँ पे CWD B कर देंगे ना, तो उस इंफॉर्मेशन को जो स्ट्रिंग की तरह ले रहा बाइट की तरह ये आपका रिटर्न करेगा, दैट्स इट। CSDR हो गया, लिस्ट डायरेक्टरी ठीक है, मेक न्यू डायरेक्टरीज, रिनेम ठीक है, वी हैव टेकन इट, रिमूव डायरेक्टरी ऑफ फाइल वी हैव टेकन इट, ओके, सो वी हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स। तो ये वैसे पीपीटी पे है, लेकिन इनको मैं कॉपी भी कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल के अंदर। सो हियर वी हैव दिस। अच्छा, अभी यहाँ पे जो हमने हियर यहाँ पे जो भी अभी हमने चीजें ली है, अगर मैं राइट के थ्रू एट ए टाइम आप एक ही स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लेकिन अगर ये यूजर से लेनी हो वैल्यू, इफ यू वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर और उनको मेरे को ऐड करना है फाइल में जब तक, और यूजर से कंसर्न लेना है कि और भी ऐड करना है या नहीं करना है, तो कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं उस पर्पज के लिए, मतलब वैल्यू भी हम यूजर से ले और यूजर से पूछे कि वेदर यू वांट टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन विद इट और नॉट, हाउ कैन यू डू दैट, और फिर उनको डिस्प्ले भी करा ले, रीड भी करा ले, हाउ कैन यू डू दैट, कैसे लिख सकते हैं उस लॉजिक को। चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो हमें हियर तो यहाँ पे हमें राइट ऑपरेशन भी करना है और उसमें भी पूछना है कि कब तक ये राइट ऑपरेशन आपका चलता रहे, राइट, एंड और फिर उनके जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे फाइल के अंदर उसको मेरे को रीड भी करना है। तो एक प्रॉपर जो चीजें लिए ना, एक तरह से एक समरी पार्ट सा है इसका। तो कैसे करेंगे, तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, तो एक तरह से आपका समरी हो जाएगा यहाँ पे। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर दैट। तो एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो कोई भी एक अपने से नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो हम फाइल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ओपन करते हैं, कोई फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नेम दे देते हैं इसको, सपोज डेमो डॉट टी एक्स टी, पहले तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये ले रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फाइल है ये भी वहीं जाए जहाँ पे मेरे बाकी कोड फाइल है। तो एक काम करते हैं, आई वॉन्ट टू प्लेस इट हियर। तो हम क्या कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, अब तो आइडिया है import os, और क्या कर दें os.chdir,
तो ये चेंज कर देगा जब भी कोड है, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये हो जाएगी हमारी, उसी के अंदर ये मेरी फाइल क्रिएट होगी, क्योंकि अभी इस नाम की कोई फाइल है नहीं इस लोकेशन पे। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हम सेट भी कर रहे हैं उसको। एंड आफ्टर दैट नाउ कम टू दिस, मेरे को राइट और रीड दोनों करना है। पहले राइट ऑपरेशन जिसमें मैं यूजर का कंसर्न लूंगा, और राइट मेरे को फर्दर फिर रीड भी करना है, तो W+ वी कैन यूज दिस नाउ। तो यहाँ पे कुछ मैसेज भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। सपोज समथिंग लाइक सपोज वी आर राइटिंग इन फाइल, सपोज इस तरह का कुछ मैसेज आ जाए, राइटिंग इन द फाइल, सो हियर वी आर राइटिंग दिस, इस तरह का। और आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग इट, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो बस प्रिंट को कॉल कर दिया, एक /n आ जाएगा। आफ्टर दैट आई वांट टू ऐड, तो मेरे को एक ऑपरेशन चलाना है जिसको मेरे को रिपीट करना है जब तक कि मैं ना चाहूँ कि वो ऑपरेशन मेरा स्टॉप हो जाए। तो आई कैन मेक यूज ऑफ लूपिंग, तो फॉर लूप, वाइल लूप, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, मैं वाइल लूप यूज कर लेता हूँ। और इनिशियली आई एम सेटिंग इट टू ट्रू, मैंने इनिशियली ट्रू ही कर दिया इसको। एंड नाउ वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, तो जो भी मेरे को ऐड करना है कंटेंट, सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया लाइन इक्वल्स टू, आई एम टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। Suppose here I am specifying enter data, जो भी आपको करना है you can enter that, and here I want to write it, so I have dot write line so here we have specified this, अब डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आपका ऑपरेशन चलेगा। और मैं थोड़ा सा गैप भी चाहता हूँ इनके बीच में, तो एफ डॉट राइट, मैंने फिर से एक टास्क किया, फिर से राइट को कॉल किया और इसको बस लाइन ब्रेक देने के लिए यूज किया कि यहाँ पे राइट क्या करे /n मिलते ही कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सो हियर एफ डॉट राइट /n, एंड नाउ आई एम टेकिंग द चॉइस फ्रॉम द यूजर कि वेदर ये जो एडिंग का जो कोड है, ये जो चल रहा है, इसको मेरे को रिपीट करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, चॉइस इक्वल्स टू, और यूजर का कंसर्न ले लेते हैं, यूजर का कंसर्न लेते हैं, उसको मैसेज भी दिखा देते हैं उसी से रिलेटेड, लाइक do you want to add more data? यहाँ पे कुछ दिखा भी देते हैं कि यूजर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यस नो। तो यहाँ पे यूजर का चॉइस ले रहे हैं, और अब यहाँ पे बता सकते हैं कब इस लूप को मेरे को स्टॉप करना है। तो वी कैन स्पेसिफाई, कंडीशन बता देता है उसके थ्रू, कई तरह की इफ मैंने लिख दिया, इफ चॉइस मैच भी कर सकते हैं। और अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है कि हो सकता है यूजर एन को कैपिटल में करे या स्मॉल में करे, तो मैनेज कर लेते हैं। तो कई तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, इफ चॉइस इन, मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर चाहे वो एन हो स्मॉल में, चाहे वो आपका कैपिटल में करे यूजर, अगर ये मैच कर गए इनसे किसी से भी, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए, सीधा बाहर आ जाए ब्रेक, तो हमने ब्रेक कर दिया। अगर ये है तो सीधा लूप से बाहर, तो लूप से बाहर आ जाएगा ये, तो ये हमने लूप चला दिया कंट्रोल करने के लिए। एंड आफ्टर दैट नाउ आउटसाइड ऑफ लूप विल बी राइटिंग दिस। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा लेते हैं कुछ कंटेंट, और मैंने बोला समरी की तरह है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या लोकेशन है, अभी क्या लोकेशन चल रही है। हियर वी कैन स्पेसिफाई कुछ मैसेज कुछ इस तरह का, द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट है मेरा एफ डॉट, क्या यूज करना चाहिए, प्रेजेंट पोजीशन के बारे में जहाँ तक पे भी है वहाँ तक हमें चाहिए। प्रेजेंट पोजीशन तो उतनी करेक्टर रीड करे होंगे इसने, बाइट पोजीशन वही होगी, तो क्या यूज करना चाहिए, कौन सा फंक्शन था विच इज यूज टू डिस्प्ले प्रिंट लोकेशन, f.10 यस। One.
हियर वी हैव यूज्ड दिस f.tell। तो ये उसको भी प्रिंट कराने की अभी क्या लोकेशन है, और फिर रीड कराना है मेरे को। रीड कराने से पहले क्या करना चाहिए मेरे को, f.seek मूव करा ले कर्सर को 0 लोकेशन पे। 0,0 भी लिख सकते हैं या सिंपली 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट विल प्लेस योर फाइल ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आपका जो कर्सर है इट विल बी मूव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, राइट। और जस्ट लाइन ब्रेक करने के लिए एक प्रिंट को कॉल करें, इसका पर्पज केवल लाइन ब्रेक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं टू रीड डेटा। उसके लिए भी मैसेज, जैसे राइटिंग इन फाइल है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे एक रीडिंग से पहले एक लाइन दिखा देते हैं। तो वी कैन राइट रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, और रीड करने के लिए वी कैन यूज, तो जो भी डेटा है मेरा, तो रीड करने के लिए f.read कर दीजिए सिंपली। तो वी कैन स्पेसिफाई प्रिंट f.read। फाइनली जब सब कुछ कंप्लीट हो गया मेरा, तो क्या करना चाहिए, क्लोज। so now we'll check it। so here we are going to check it now। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट exp, तो राइट एग्जाम्पल नाम से पहले ही ना हो .py, और डेस्कटॉप इस सिंपल कोड यहीं पर हम इसको प्लेस कर रहे हैं। सो सी इट इज शोइंग, तो इस नेम की एक फाइल क्रिएट कर चुका होगा ये, यहाँ पे demo.txt फाइल बन गई है। एंड नाउ कम टू द एंट्री ऑफ इट। उसमें डेटा ऐड करना शुरू करते हैं एज पर द कोड। इट इज वर्किंग, एंटर डेटा। तो वट एवर डेटा यू वांट टू एंटर, you can specify the data now, right? So you can specify any data. Suppose I have added this. Now it is asking, do you want to add more data? So here, if you want to add some more information, you can specify. What is asking? So here, oh, कुछ रॉन्ग हो गया मुझसे। क्या रॉन्ग कर दिया हमने, बताओ। सर एन या वाई प्रिंट करना था। हाँ, ये तो केवल कंसर्न, हालांकि काम कर दिया उसने क्योंकि फॉल्स है। एन के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो चलेगा। तो अब डाटा यहाँ पे करना था हमें, ठीक है ना। जो भी डाटा करना है मेरे को यहाँ पे करना है। सो फिर से ये कंसर्न पूछेगा, तो जब तक आप इसको कोई भी वैल्यू करें, एन के अलावा कोई भी वैल्यू करे, वैसे तो ये करना चाहिए था प्रॉपर, लेकिन कोई भी वैल्यू करे, हमने किया तो फॉल्स ही जा रहा है, तो इट विल आस्क फॉर दैट। सो ऐड कर दो यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल। और अगर मैं स्टॉप करना, जहाँ पे मेरे को स्टॉप करना है, आई कैन यूज एन करेंगे तो सी ये स्टॉप हो जाएगा, और जो भी आपने ऐड किया फाइल के अंदर, तो इट विल डिस्प्ले यू दैट। सो रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, हियर वी आर परफॉर्मिंग रीडिंग ऑपरेशन। सो ये जो भी हमने टास्क किए, एक तरह से उसका ही एक समरी टाइप सा सेशन था।
यहाँ पे राइट भी किया, हमने पोजीशन के बारे में भी बताया कि क्या पोजीशन है, द पार्ट पोजीशन दिस, जितने भी हैं उसे पता लगा कितने कैरेक्टर जा रहे हैं। एंड हियर वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग इट आल्सो। ऑब्वियसली रीड करने से पहले कर्सर को मूव भी करना पड़ेगा। इन द बिगिनिंग इफ यू वांट टू रीड ऑल द if you want to read the entire content, all the content, then so we have done that also. So this is kind of a summary of this that we are doing here. So इस सेशन के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। दिस इज फॉर दिस सेशन। नाउ आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज विच विल बी बेस्ड ऑन दिस फाइल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट। इसी पे बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी जो आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एंड देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू। अब हमारे क्या है, एक लेवल कंप्लीट हो गया। जब फंक्शन तक हमने जो किया है ना, बेसिकली हम एक बेसिक लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर फंक्शन वी आर मूविंग ऑन टू द इंटरमीडिएट लेवल नाउ इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो just for self analysis purpose, you will be having one quiz tomorrow. ठीक है, कल सैटरडे है तो you will be having one quiz. It will be MCQ based quiz, and this quiz will be conducted in second half tomorrow. तो कल हम इसको कंडक्ट करेंगे, इसको कंडक्ट करेंगे हम 3 बजे के करीब। एक MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें ये बेसिकली अभी इसके मार्क्स जो कल मैं क्विज कर रहा हूँ, इसके मार्क्स आपके अभी ऐड नहीं होंगे, आपके मैथोलॉजी का पार्ट अभी नहीं होंगे, वहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। जस्ट फॉर सेल्फ एनालिसिस पर्पस वो हम लास्ट में लेंगे। जब हम पूरा पाइथन कंप्लीट कर लेंगे ना, देन वी विल बी हैविंग मॉड्यूल एंड टेस्ट, उसके मार्क्स कंप्लीट होंगे। और उसी समय लैब असेसमेंट भी लेंगे, वो तो कंसिडर होगा मार्क्स के लिए। बट अभी कल जो हम लेंगे इट इज जस्ट फॉर सेल्फ एनालिसिस पर्पज, कि आपको भी पता लगे कि हम सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे है, कहाँ पे, और फर्दर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आई कैन नो आल्सो अबाउट दैट कि कहाँ पे चीज़ें लैकिंग तो नहीं करी कहीं पे। तो कल का जो सेशन रहेगा आपका सैटरडे का, तो जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो भी आपका डाउट क्लियरिंग एंड लैब प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जो भी अब तक सेशन हमने किए हैं शुरुआत से लेके, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो मॉर्निंग का सेशन हम इस पर्पज़ के लिए रखेंगे। और इन सेकेंड हाफ एट 3 o'clock थोड़ा सा आपको उनको पढ़ने के लिए, रिकॉल करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैं 3 बजे कर रहा हूँ उसको। तो आप इनको रिकॉल करिए चीज़ों को, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, और जो भी डाउट होंगे कल हम उनको डिस्कस करेंगे। और 3 बजे यू विल बी। सो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अब इस क्विज में प्लीज टेल मी कि आज जो हमने किया इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। नो सर। कर सकते हैं। अच्छा, नो भी आया। Fine. चलो आज वाला नहीं कर रहे हैं, आज वाला उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आज से पहले जो किया है मींस मॉड्यूल एंड पैकेजेस तक जो हमने किया है, और पैकेजेस में भी फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया है, ठीक है। तो मॉड्यूल एंड पैकेजेस तक जो हमने किया है उस पर बेस ये MCQ बेस्ड बना देंगे, उस पर बेस ये आपका क्विज रहेगा, ठीक है। आज वाला नहीं रखते हैं अभी, अभी थोड़ा सा इस पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई भी डाउट आएंगे तो आज के लैब प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी आप डाउट पूछेंगे, और कल का मॉर्निंग सेशन भी हमने इसीलिए रखा कि ओवरऑल शुरुआत से जो हमने आज अभी तक किया है, किसी में भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है उसका डिस्कशन रहेगा। तो कल का मॉर्निंग सेशन आपका डाउट क्लियरिंग एंड प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक डाउट था वो इनकोडिंग डिकोडिंग के समय वो वाला कोड नहीं, बट आपने वो फिर से यूज किया था राइट? हाँ जब हम लोग को सीख कर रहे थे, हाँ तो जी, वो वाला कोड मुझे just देखना था एक बार। आई एम ओपनिंग इट, दिस वन। हाँ, I don't know why it's not open. Decode. All right, sir. Take it. ठीक है। Thank you. Sir, I have a doubt. यस, टेल मी। सर, आपने रिमूव करते वक्त एक सिंगल फाइल को रिमूव किया, क्या हम मल्टीपल फाइल्स को एक ही साथ रिमूव कर सकते हैं?
कर सकता है, लेकिन जब भी मल्टीपल की बात आएगी तो फिर तो लूपिंग पे जाना पड़ेगा और फिर उनके नेम भी उस तरीके से बताने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग? Okay, sir. तो जब हम मल्टीपल फाइल्स की बात कर रहे हैं तो एक तरह से फाइल के नेम का कलेक्शन, एंड वी कैन इटरेट थ्रू दिस फाइल नेम, और उन्हीं को अगर मैं एसोसिएट कर दूं रिमूव से तो वी कैन डू दैट। आर यू गेटिंग? Yes, sir. मतलब डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट उसी फंक्शन को हम थोड़ा लूपिंग के फॉर्म में लाके सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, इन दैट वे वी कैन डू। सर ये सीक का सा -10 to 2 क्यों रखा गया था सर, वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, ओपनिंग आई एम शेयरिंग इसके अंदर। सीक में क्या होता है, यहाँ पे मैंने यूज किया है टू का मीनिंग क्या है, इट विल सेट द रेफरेंस पॉइंट टू द nth पोजीशन टू द लेफ्ट, एक्चुअली इट विल कंसीडर फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड करेगा तो ऑब्वियसली मेरे को बैक जाना पड़ेगा अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो पॉजिटिव तो मतलब इन द राइट लेगा, राइट तो कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक ही देगा आपको। आर यू गेटिंग? सो टू स्पेसिफाई द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट आई वांट टू टेक द थिंग्स बैकवर्ड, दैट इज व्हाई वी हैव पुट माइनस। और कितना बैकवर्ड, कितने लोकेशन, कितने कैरेक्टर लेने, वो आप एंटर कर सकते हो नंबर, दैट इज व्हाई इट इज वी आर टेकिंग इट लाइक दिस। आर यू ओके गेटिंग? सर, यस सर, यस। ठीक है। जस्ट अ मिनट प्लीज। Okay students, if you have any query you can ask. Sir, we also have Java 8 in our module. So you're going to take that also? No, I will not be taking Java. There will be another faculty for that. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, you said that we would have the proper test at the end of the module. How many more classes do you think is there before that time, roughly? Like how many weeks or so? Sir, your mic is muted. Oh, I'm sorry. So uh, hardly 1 more week will be required for that, or it may be 7 to 8 days. Okay.
क्योंकि अभी Thank मेरे को भी एक्चुअली प्रॉपर इस तरह से शेड्यूल नहीं मिला है, बट जिस पेस पे हम चल रहे हैं तो इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 7 to 8 days. Okay. और जब भी होगा ना ये क्विज जो आपका मेन मॉड्यूल एंड क्विज होगा लास्ट में, आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर 3 or 4 days फ्रॉम द एग्जाम सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर दैट सेम. ठीक है ना? All right, sir. Okay, so if you don't have any query presently, can we end this session now? Yes, sir. Yes. Okay, so we will continue this file handling and management practice session at 2:30. So we will meet at 2:30 now. So I'm closing Thank the you, sir. session.